नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं इस वक्त हूँ एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। And very shortly, Pradeep ji, we must congratulate everybody. I think the Women's Empowerment Bill or the Women's Reservation Bill, yes sir. Which is actually the Empowerment Bill, will be passed today. Yes. There's no doubt about it. At least the Lok Sabha will pass it. And I think it should be passed in the Rajya Sabha too, because all parties have more or less agreed that this bill needs to be passed. And if the Congress and the BJP gets together, I mean, then nothing else remains. Yes, yes. Really and truly, nothing else remains, and we need it. अब देखिए साहब, पंचायती राज का जो बिल आया था, कॉर्पोरेशन में भी रिजर्वेशन का जो बिल आया था, राजीव गांधी जी के ज़माने में तो 1/3 रिजर्वेशन आज तक चल रहा है, which is the only reason why women are represented in all the municipalities and the corporations, and of course in the panchayats. Earlier, if you remember, the only thing was that whosoever used to be the sarpanch, his wife used to be elected, and it's not far from. It's not changed much. Yes, but it's always brother, it's always sister, somebody's mother-in-law, wife. Yeah, but I hope this new reservation in the assembly and in the Lok Sabha and Rajya Sabha will, I hope, bring about some change. And right, I'm told that there's a hissing sound coming from my mic because it's brushing against my jacket. I hope. Is that all right now? Is it okay? Gentlemen, is it okay? Fine. Thank you so much. And at the moment with us, our very old friend, very senior journalist, a very old savvy media person, one of the best PRs that I know, and of course now an environmental warrior, green warrior, my old friend, Pradeep ji's old friend, Mr. B.N. Kumar. B.N.K, namaskar. Namaskar. Namaskar, Pradeep ji. Namaskar. Namaskar. How are you? All well, sir. Not actually well. Why? What happened? What happened to you? But did somebody put a spell on you? Did they put a spell on you all the way from Tirupati? You know? Not yet. Not yet. How dare you? पर्यावरण का इतना नुकसान हो रहा है जी. How can I be well? Always concerned about it. सर, गणपति लाते हैं कि नहीं लाते, ये तो बता दीजिए. लाते हैं ना सर, हम बताते हैं. हम 1.5 दिन की गणपति होते हैं हमारे घर पे. तो आज चले गए होंगे, आज आपके गणपति चले गए होंगे आज तो. आज जा रहे होंगे. Actually, I am traveling. I am in Delhi now. Oh, you are in Delhi. So it is Mr. B.N.K. Kumar joining us from Delhi. So where are you staying in Delhi? You have a house in Delhi as well? How nice. No. I am staying in a resort. Good to have been the head of Genesis PR. You made a lot of money. Very good. No. I am staying in a resort here, friends resort. B.N.K. कुमार साहब, ये बताएं, जो नया तिरुपति का मंदिर बन रहा है नवी मुंबई में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और आपने बताया, और उसके अलावा मिड डे में 1-2 और अखबारों में भी आ गया है, that something new and even more dangerous is happening. Why do our people, I fail to understand this. Why do we love building walls on beaches? बीचेस के ऊपर हम लोग वॉल क्यों बनाते हैं? वी वांट टू डिस्ट्रॉय द सैंडी बीच और व्हाट डू वी वांट टू डू? क्या मतलब ये अक्सा बीच के ऊपर प्रदीप जी, बिल्कुल सर, 10 फुट ऊंची 14 फुट चौड़ी, मतलब इतनी बड़ी दीवार बना दी है. अरे यार, इसका क्या मतलब है? मतलब मेरी समझ के बारे है, ये क्या है? आपको समझ में आया बीएन के साथ? जरा बताएं आप. अबे बिल्कुल समझ में नहीं आया था जब एक्चुअली बीच का काम शुरू किए थे इन लोग. काम पिछले जून जुलाई में जब हमारे ध्यान में लाया गया था, तो हमने हमारे वॉलंटियर्स को भेजा वहाँ पर फोटोज. Can you speak a bit louder, BNK? Just speak a bit louder. That's it. Yeah. It's okay. Can you hear me now? Yeah, fine. I could hear you, but it'll be better if you speak louder. That's it. जी. Yeah. Of course, difficult to match your voice, but I will still try. पिछले जून जुलाई महीने में जब ये काम शुरू हुआ था, उस टाइम we went and inspected we sent our boys to check the place, what's happening. पता चला कि यहाँ पर इस तरह की दीवार बन रहा है, तो हमने पता चला कि बाद में कि ये महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड जो है, under the guise of beautification, they started constructing this.
तो हमने इंक्वायरी करी तो उन्होंने बताया कि हमको MCZMA से CRZ परमिशन मिला है। तो हमने MCZMA में इंक्वायरी किया और साइट से इनका जो इनको परमिशन मिला है उसको परमिशन सारे हमने डाउनलोड करके उनके स्टडी किया, तो पता चला कि इट इज नॉट द परमिशन इज नॉट गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए पक्का कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सी वॉल. It was only for beautification and very limited purpose of having a lawn, a playground, some kind of volleyball ground, those kind of things, and not definitely meant for this kind of a structure. Also, in fact, Maharashtra Maritime Board जो है has gone to MCZMA for permission for these kind of structures not once but 4 or 5 times. Every time they go there with a different plan saying that we want to beautify, we want to repair an old existing wall, we want to do this. Finally, they started doing this and last जो परमिशन जो MCZMA से इनको मिला था उसमें क्लियर कट कंडीशंस थे कि इसके ऊपर आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो. उन्होंने जितने भी मांगे करी डाली कि वो एक वो शैक्स बनाएंगे, होटल स्टेप कर बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, पार्किंग स्पेस बनाएंगे, इन सबको नकारते हुए MCZMA ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट. I'd like to ask you one thing. Bhenge sahab. Why does the AKSA beach, a very beautiful beach under normal circumstances, and by the way, one beach which is very dangerous, this is also, I must tell our viewers, yeah, it is very more accidents take place at AKSA beach, more people drown at AKSA beach than on any other beach in Mumbai, by the way. Correct. Now, why would they want to beautify it? For what? I don't understand. Beautification for what purpose? Because people are already coming there. People love the beach. आपने ये concrete walls बना करके, ये सब बना करके, मतलब whom are you catering to? What is the idea? BNK साहब. Primarily it looks like to commercialize the entire area. वहाँ पर शॉप्स बनाएंगे, पीछे रेस्टोरेंट कुछ बनाएंगे, उसके नाम से CRZ कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, it is not in the high tide zone, sorry, वगैरह excuses दिखा के. एक्चुअली इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री में आप जाना चाहूँगा, ले जाना चाहूँगा. Please go ahead. जी, ये इनका बहुत पुराना प्लान था महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड का यहाँ पर इस तरह का कमर्शलाइजेशन करने का. तो उसको जब सुनने में आया तो हम लोगों ने अपोज किया. हमने कहा कि यहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो ही नहीं सकता है. और इस बीच पौंडीचेरी बीच में भी इस तरह की वॉल बनाने का प्लान चल रहा था. तो उस टाइम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो नेशनल बेंच है दिल्ली वाली, उनका जस्टिस अग्रवाल, उन्होंने रूलिंग पास किया कि किसी भी बीच में अक्रॉस द कंट्री इस तरह की वॉल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इस तरह की दीवार बनने से समुद्र की लहरों को आने जाने में तकलीफ रुकावट पड़ती है. और समुद्र का प्रवाह को आप रोकोगे, पानी यहाँ से रुकेगा लेकिन जाके निचली एरिया में फ्लडिंग कर सकता है. और इट इज़ नॉट गुड हेल्थ फॉर द बीचेस. जैसे कि मैंग्रोव्स है, वो भी एक कोस्टल प्रोटेक्टिव सिस्टम है, ए नेचर क्रिएटेड सिस्टम. बीचेस ऑल्सो प्रोटेक्ट द शोर्स फ्रॉम अगेंस्ट हाई टाइडल अटैक्स. अगर आप समुद्र किनारे जाके देखोगे, दूर से आपको दिखेगा बहुत जोर, गोवा में होगा, मुंबई में होगे, कहीं भी आप देखोगे समुद्र के बीच में, बीच के ऊपर खड़े रह के देखोगे तो दूर से आपको बहुत तेजी से लहरें आती है, लेकिन जब बाकी बीच से टकरा जाती है, लहरों की फोर्स जो है कम हो जाती है. व्हिच मींस दीस बीचेस आल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स. ऐसी बीचेस को आप खत्म करके यहाँ पर कमर्शलाइजेशन करके आप करोगे. Before Pradeep ji comes in, I want to know from you, because we've been seeing this, I've been seeing this from 1993. You've known me since then. You know, why do these guys hate sand beaches? जो रेत वाले हमारे जो बीच हैं, इतने खूबसूरत बीचेस हैं मुंबई के. I think Mumbai has how many 8, 10, 12 beaches, maybe even more. ये why do they want to destroy all of them? अक्सा बीच को डिस्ट्रॉय कर दो, जुहू बीच को डिस्ट्रॉय कर दो, दादर चौपाटी को खत्म कर दो, गिरगाम चौपाटी को खत्म कर दो, जितनी भी चौपाटी हैं जहां पर रेत है उसको खत्म कर दो. ये क्या है? क्या इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब what? It's very difficult to understand what they have in their mind, because I think slowly the idea is to commercialize the area behind the wall, ताकि वहां पर उनको पानी का प्रवाह का इफेक्ट कम पड़ेगा. They want to create another marine drive in this area. We don't know. तो प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी सेफ्टी वॉल, एक सेकंड प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपने दीवार बना दी. आपने दीवार इसलिए बनाई क्योंकि आपने कहा कि ये इरोशन प्रिवेंट करती है. इट प्रिवेंट्स इरोशन, व्हिच इज ट्रू, नॉट अनट्रू. लेकिन क्योंकि वहाँ दीवार बन गई है,
अब समंदर का पानी इस तरफ नहीं आ रहा तो वॉल के इस तरफ यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट व्हाटएवर यू वांट. कहने का मतलब ये हुआ. It looks more like a safety wall for me. I mean, what I see is safety wall that थोड़ा partition हो जाता है कि where people can move around and now will this wall lead to commercialization? Because in Juhu Beach, beaches like near Juhu Beach, we found that where the CRZ thing was there, the BMC and the agencies got together and demolished all kind of commercial activities on the beaches. So if the safety wall is there for whatever reason they say, protective reason or decorative or for whichever purpose they have got, if the government and the agencies make up a mind that the CRZ, there will be no construction, there will be no activity. Like in Juhu Beach, everything was demolished. BN Kumar ji, क्या ये सरकार can take this action? सीधे से no development there. The safety wall, more than beautification, is it for safety? What do the agencies say? The agencies say it is to protect the beach, but that's the false flag because number one, the beach extends, the heighted area extends beyond the wall. और दीवार के पीछे भी पानी का प्रवाह चालू था. बीच के बीचों बीच जब जाके बीच का नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर रोकोगे, that will be disastrous for the entire area. It is not a protective wall; it is destructive wall, according to me. Right, but the same thing has been tried out, and people are fighting against it even at Versova Beach. If you remember, at Versova Beach also they made a wall. इनफैक्ट वर्सोवा बीच में जो दीवार बनाया था पीडब्ल्यूडी ने, उसके ऊपर हमारे जो दोस्त है मिस्टर जोरू बथेना, जो हमारे साथ इस केस में भी लड़ रहे हैं, मिस्टर बथेना हैज गॉन टू एनजीटी. अनफॉर्चुनेटली एनजीटी हैज रिजेक्टेड द petitioner's plea and they upheld that PW has got all the permissions. Only thing is permissions are given with conditions. These are here in case of AKSA, all the conditions are being violated. That is our argument, you know. So now Bhattena had gone to Supreme Court. Supreme Court had given a stay on the construction of the Versova wall now. Yes. But the wall still remains. It has not been demolished yet. Wall is still there. It's not demolished because they got a stay and the hearing will continue later. So now it is stage one. And all sorts of nefarious activities are going on in the shadow of that wall. That also we know. Yes. So what is the situation? And in case, what is the situation in AKSA Beach? By the way, congratulations, Zoru. You've gone to the Supreme Court and you've we want to. Great work from Mr. Zoru Bhattena, our very dear friend. But what is the status at the moment at the AKSA Beach? अभी क्या status है? AKSA में यह है कि AKSA में हम लोग बहुत कोशिश करी इस काम को रुकवाने के लिए. We wrote to the Chief Minister. In fact, what we did was we exhausted all the available channels. Like we wrote to the उस टाइम के एमएमबी के जो सीएमडी थे, सीईओ थे, मिस्टर साइनी, उनको भी हमने, अमित साइनी, उनको भी लिखा था. उन्होंने कहा कि वी गॉट ऑल द परमिशंस. तो हमने उनको पॉइंट आउट किया, एनजीटी का नेशनल बेंच जो है, दे हैव पुट अ स्टे ऑन दिस. ही सेड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. मैंने वो डॉक्यूमेंट उनको पेश किए, उनको मैंने भिजवाया. उसके बावजूद उन्होंने दे कंटिन्यूड विद द वर्क. फाइनली विद नो ऑप्शन लेफ्ट वी आल्सो वेंट टू एनजीटी इन पुणे, वेस्टर्न जोनल बेंच ऑफ एनजीटी में हमने गए. और एनजीटी आफ्टर कपल ऑफ हियरिंग्स they admitted our petition for hearing. Now they have given notices to Maritime Board. We also kept I read environment in midday that the Chief Minister, Mr. Eknath Shinde, has ordered an inquiry. Is that correct? That's true. He, in fact, he asked when we appealed to him, "Ki boss, please look into this matter. They are destroying the beach." He, in fact, immediately asked the Environment Department, the secretary there, to inquire into it and report back. And what happened was, after that, we have not heard of any inquiry, nor anyone above called there for a site inspection. So what I did was I filed an RTA petition with the Environment Department asking them to give information on action taken following Chief Minister's directive. उसके ऊपर भी मुझे रिप्लाई नहीं आया था. That also we mentioned in the NGT petition. Finally, one small development is that the MCJDMA का जो member secretary है, he also director of environment. He heard me. He conducted an online hearing of my RTA petition, and he said, no, I asked the municipal corporation, Mumbai Municipal Corporation, and the Mumbai Suburban District Collector to go to the spot and check what are the violations, as we stated.
He said if there are any violations, please take action. That order has been given, and even on that also there is no response. No inspection was done. So finally, again I went back to the MCZMA director, Environment Department. They finally gave a 1 week deadline last Monday, Tuesday. They issued a fresh letter to Municipal Corporation and the Mumbai Suburban District Collector with a 1 week deadline. आप लोग he wrote a DO letter also, DME official letter. Please inquire into that report within 1 week. I mean 1 week अभी कल खत्म हो गया था, अभी तो उनका रिप्लाई नहीं आया है. आज फिर मैंने उनको रिमाइंडर भेजा हुआ है. And anyway, Ganpati is on right now. I don't think you'll get a reply right now. Yeah. At the moment. Everybody, Pradeep ji, please. No. One is this wall that is being built, and next is the pollution levels of the seas that comes on the shores. Awful. Now, the STPs, Prime Minister Modi had come here and to Maharashtra, and then he declared about seven STPs yes. To take care of this sewage that flows into the sea and which comes back. Yeah. Now, like every other beach, even AKSA is affected by this kind of pollution. Now, how is the pollution levels? Has the STPs really reduced, or is the STP still under construction? What is the status of the 7 STPs, and how it is affecting the pollution levels of these seas that come, the beaches? Whether the STPs are functioning or not, whether they have been implemented or not, ये सब अलग रखे. अगर आप देखोगे, during July when there were heavy rains were there, the entire muck, जितना सारा कचरा बीच के ऊपर जमा हो गया था, मरीन ड्राइव पे आया था, ये आपके गेटवे के सामने आया था, जूहू बीच में आया था. I mean, it's an ongoing process. जितना भी STP अगर करो, बाकी जो कचरा डालते हैं, other than the sewage that goes into the sea, there's a lot of, you will be shocked to know, Pradeep, that we throw even mattresses into the sea. ये समुद्र में जाके लहर से वापस आ जाती हैं, and they get stuck in mangroves, and we are killing mangroves also in this, because the mangrove cell has started with about 10-12 NGOs to go and work on the cleaning of the mangroves, because they were suffocating the mangroves. Mangroves को भी लोग हवाई चप्पल, mattresses, medical waste, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग ड्रेनेज में डाल देते हैं, वो डायरेक्टली समुद्र में चला जाता है, and it comes back. Nature hits back. That muck comes back to the shore, and in mangrove area it gets stuck in the mangroves. Beaches में वहाँ पर जमा हो जाता है. No, we found cases where Bandra, the Carter Road, where the mangrove area is there. We found people dumping debris in there. Debris was put, concretized cement, ये और वो पूरे mangroves में जाके वो dumping हो रहा है. And that also, it's a very, very active area, socially very active area. There also, if you find Bandra West, this kind of dumpings are going on. We did highlight a lot of things where the BMC and other agencies promised to take action. Now, this seems to be a collective responsibility where social awareness have to be created that you can't just dump these things. And I think the penalty or the punishment should be so rigorous that people fear to do these kind of things. But now it seems to be dumping debris into mangroves, putting all these, like you said, beddings out there in the mangrove areas. Now there's no deterrent. The law is not serving as a deterrent. Do you think the government should come out with more punitive and more stringent penal actions that will act as a deterrent for people polluting these areas? I think more than this kind of deterrent, we have enough laws. Laws are there good enough. What is required is the accountability. The people in charge of these areas, they should be more accountable, they should be more alert, and they should be made accountable for whatever violations are taking place. For instance, there is look at the police area. If there is a communal riot, in any riot happens in a particular area, that area's DCP, ACP, they are all transferred, they are punished. Similarly, as far as the environmental violations are concerned, there is no accountability, which is why we have also been campaigning for creating a green police. That was the suggestion was sent to when this man Devendra Fadnavis was the chief minister. But do you think that will have any effect at all? Won't it be better to use the normal police with their normal policing powers? Because those marshals that were appointed by the BMC, poor chaps, they get beaten up all over the place. No, marshals don't work. Yes. Marshals don't work. So if it comes from Mumbai police itself, then it's fine. No, the issue here is
police, they have a lot of work on their own, on their hands. No, They have a lot have of new recruitment. crime situation happening. Have new recruitment This- for them. But what I want to ask you, BNK, is what is your Ji, ji. information? Do you think they've already sold off the area on the shadow side of the wall, behind the sea, to other builders and other people? What have they done? Why the hurry? And as one of the newspapers said, is that a holding wall, a security wall, or is that a motorable road? 14 feet wide wall? What's going on? Please. Yeah. In fact, that's what the NGT judge also asked. What is this motorable wall doing on the beach? During the first hearing. Also, if you look at this frame now, look at the RKB, Yes. look at all the garbage, and there are also some new stalls have come up there. Yes. There are food stalls kind of a thing, almost touching the water. Yes. I mean, you are attacking the sea. You are not only building the wall here, you are encouraging more and more into the sea, and you are actually attacking the sea. And they are not supposed to put any construction material, dump construction material on the water side, on the seaboard side of the wall. That's right. That is also another major violation. And you know what Maharashtra, the Maritime Board people said? They said, you can see the electric poles there. They said because of the corrosion, the electric poles are getting spoiled. I said, Electric poles are getting spoiled. Wow. For protecting the electric walls, electric poles, you are constructing this wall. Utter nonsense. You know, at least fact, in Versova they had an excuse. At least on the Versova wall they had an excuse that the water was kind of eroding the walls of the buildings. It was reaching right up to the buildings, so there was an excuse. Yeah. कि वहाँ पर wall कर दीजिए. Sir, the all I know is those new lovely lamps which were set up in and around Juhu Beach for the G20 conference here, they haven't worked since then. Since then they've just been off. They've all been fused. They've not worked at all. So I don't really know what's going on here. G20 खत्म हो गया, खत्म, चमक भी खत्म. I mean, this is like absolutely crazy. So where does it end, BNK साहब? ये बताएं आगे क्या मतलब? We're going to destroy all the beaches. We're going to destroy all the mangroves. We're going to destroy everything. And when Mumbai floods, there'll be more money to be made. Is that it? Also, not only Mumbai, RKB, all along the Maharashtra coast. Yes. This Maritime Board has obtained permissions from the coastal and management authorities for constructing walls at various places under the guise of protecting the fishing all areas, the way down to fishing Goa, villages. including Konkan. Entire Konkan region, entire Konkan. कम से कम 20-25 दीवार बना रहे हैं वहाँ पर. They love making walls. Are they in the wall constructing business? The Maritime Board पूछना चाहिए construction company क्या है? Also, one more thing they are doing. They are going to have other infrastructure facilities along with providing the jetties for the fishing community, recreation, hotel, malls, these kind of things. It is actually ridiculous because on the beach side, close to the coastal area, if you start doing this kind of construction activity, you will be ruining the coast also, totally. All that the fishing community wants is a clean sea. That's all that they want. They want people to stop dumping industrial waste, chemical effulgents and effluents into the waters in and around wherever they have their fishing boats. If they just do that, it will be fine. वर्सोवा की हम लोगों ने बात करी, वहाँ पर प्रदीप जी और मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं वहाँ पर जो मछुआरे हैं वो कहते हैं एक ज़माने में यहीं पर जेटी के पास we could get fish right here. Now you don't get fish even 100 kilometers inside the sea. I mean, what are you talking about? What is going on here? This is most depressing, but absolutely terrible. But thank you so much, BNK, for joining us from Delhi. That was Mr. BNK Kumar. He's rung the alarm bell with regard to what's happening at AKSA Beach. Please go ahead. Lakes, Thane, the city of lakes. The how is the 15 lakes are excess toxins, having excess toxins. You have been a fighter, Thane, Navi Mumbai. Anything about good news about the lakes, the situation of lakes in Thane, where 15 of them had excess toxins? No, I have not heard anything latest on that. I'll check on that. Now that you mentioned this, I'll definitely check on that. But now that you mentioned the lakes issue, RKB and Pradeep, I just wrote to the Prime Minister on very important issue.
you know, Mr. Modi has he got pet project called Amrit Sarovars. He created something like some 25, 80,000 Amrit Sarovars across the country. And these lakes, you know, I was telling them that they should be notified as wetlands. Otherwise, today Mr. Modi's project is there. Tomorrow, maybe 10 years down the line, the lakes also will start disappearing under the guise of infrastructure development or some development, urban development, etc. But I'll tell you something, since you are in Delhi, some good news from Delhi. बहुत पुराने ज़माने में इतना भी पुराना ज़माना नहीं है, मतलब कितने 200-250 साल पहले की बात है। मुगलों ने एक नहर बेस्ट बनाई थी which used to water the लाल किला. It used to go right down the चांदनी चौक के बिल्कुल बीच में से जाती थी, और उसका पानी जो है 2-3 अलग-अलग जगह से जाता था, हिंडन कैनाल से, गुड़गांव से, अलग-अलग जगह से आता था, और एक और जगह थी नजफगढ़ झील से भी आता था। जो नजफगढ़ झील है that had dried up, और उसके ऊपर पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया था। एक बात बोलनी पड़ेगी, the Aam Aadmi Party managed to get rid of those illegal constructions, and the Najafgarh Jheel, by the way, is back. वो लेक वापस आ गई है for the first time. I feel so good. The Najafgarh Jheel is back. You can see the water right there, and it is part of the lakes which supply Delhi. I hope, but since they are not there, I hope, since it is out of Delhi, the Bhatkal Lake, for example, is out of bounds as far as Delhi is concerned. It comes under Faridabad. I hope somebody or the other will take a look at the Bhatkal Lake also and perhaps revive that lake, because I remember going on picnics over there as a little child. But you know what? We really need more and more people like DMK right over here, like Stalin Dayanand Saab, like Zoru Bathena Saab, like Nand Kumar Pawar, like Rohit Joshi, like Afroz Shah. Now, Stalin who are really protecting the nation. कुछ बोल रहे थे आप सर, बोलिए। बोलिए DMK साहब। Yeah, I said Stalin Dayanand also. I said Nand Kumar Pawar, Stalin Dayanand. I said Stalin Dayanand. Bathena. You didn't hear it. Yeah. I said Stalin Dayanand. Swachh Bharat has to spread beyond streets to the water bodies. To the water bodies. The Prime Minister is only confined his Swachh Bharat to the streets of the country. Now the environmentalists want him to take it straight to the water bodies. Now, as he said, the other lakes not water bodies. Lakes have not been declared as water bodies. B.N. Kumarji, that's what you said. Yeah, wetland. They have not been declared wetlands. Wetlands. They are water bodies but not wetlands. Okay. But the only thing is, स्वच्छ भारत अभियान की जब आप बात करते हैं प्रदीप जी, तो सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी के माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है, स्वच्छ भारत अभियान, लेक के आसपास दीवार बना दो, कंक्रीट वॉल बना दो, जिसकी वजह से लेक मर जाए। मतलब that's all that we are doing. Anyway, BNK, go ahead with whatever you are doing in Delhi. All the very best to you. God bless you. Thank you for working so hard. By the way, this BNK Kumar is the one person responsible, along with a couple of others, for fighting very, very hard for saving the Parsik Hills in and around Thane. Thank you so much for joining us. Thank you. BNK. Thank you. Would love to have you back, and one of these days you must come to the studio and sit with us over here. Sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Vande Mataram. No, this is most distressing. I'm not even thinking about it. What are they doing to this city? I mean, come on. देखिए साहब, दाना पानी बीच, प्रदीप जी मैं और आप गए उधर अफरोज शाह के पास, उसके बाद ये अक्सा बीच जो है, जुहू बीच जो है, दादर चौपाटी जो है, गिरगाम चौपाटी जो है, क्या हो रहा है? अब क्या कर रहे हैं? मतलब this is. Now when he says that lakes are not wetlands, that's shocking. Lakes are not wetlands. Yes. So you're not going to take care of it. No, you're not going to take care of it. So if you don't take care of it, they'll all dry up and go. That's it. That's all that's going to happen. Which is absolutely awful. I hope somebody wakes up. We'll of course continue our campaign to the best of our ability. But I salute these green warriors. They are brilliant. These guys are really something. At the moment, from the Congress, or by the way, please do keep sending in your comments. आप अपने comment भेजें. क्या जितनी भी चौपाटी हैं मुंबई के आसपास, ठाणे के आसपास, क्या उनको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? ठाणे, as Pradeep ji said just now, is described as a city of lakes. और क्या कर दिया हम लोगों ने उन लेक्स का? अरे भाई, अपनी जो विरासत है उसको तो संभाल के रखो। क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी समझ के बाहर है। क्या आपको लगता नहीं है कि सब लोगों को मिल करके मुंबई शहर को, ठाणे शहर को, नवी मुंबई को, कोंकण को बचाना चाहिए? हम सबको मिल के बचाना चाहिए। आप अपने कमेंट जरूर भेजें. We would love to read them out. Right now, at the moment, with us from the Congress, सुरेश चंद्र राजहंस जी. सुरेश चंद्र राजहंस जी, नमस्कार.
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अब आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। हाउ यू? वंदे मातरम। और तो बहुत बढ़िया fine, भाषण sir। रहा सोनिया गांधी जी का, बहुत बढ़िया भाषण रहा राहुल गांधी जी का, और बड़े दिनों के बाद मौका दिया गया बोलने का, सबसे बड़ी बात है। ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है भारतीय संविधान की। तो राजीव गांधी जी का सपना अब साकार होगा। आज शाम तक मुझे लगता है बिल पास हो जाएगा, लग रहा मुझको। ट्रू सर, ट्रू सर। आप तो बड़े खुश होंगे अभी, बहुत बहुत खुश होंगे सारे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आज के दिन में जो जो लोग चाहता है कि भारतीय महिला सशक्त बननी चाहिए, भारतीय नारी का सम्मान बढ़ना चाहिए, इस विचारधारा को लेकर जो जो लोग काम करते हैं वो सारे भारतीय आज खुश है, और भारत की इस भूमिका के ऊपर सारा विश्व अपने आप को गौरवशाली फील करता होगा। वंडरफुल। प्रदीप जी। सुरेश चंद्र जी, ये एक जबरदस्त विक्ट्री था, बट अमित शाह जी का कहना है कि देखो ये मोदी जी को श्रेय जाता है। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि देखो मोदी जी को श्रेय जाता है। तो अलग अलग बीजेपी के जितने वक्ता, सब लोग का कहना है कि ये पूरे आपको क्रेडिट, सब लोग ने लिखा, सब लोग ने बोला, सबने कहा कि इस प्रकार से सोच करना चाहिए। कितने पार्टीज थे, सब अपने अपने विचार रखे इतने सालों से, तो सिर्फ मोदी जी कर पाए, और वही डायलॉग बोल रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ कि मोदी जी एकदम स्थिर था अपने मन में कि ये, और मोदी जी खुद बोले कि भगवान ने सब पवित्र काम मुझे ही सौंप दिया है करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी, क्या ये पूरे श्रेय मोदी जी को जाता है सुरेश चंद्र जी? मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी जब इस तरह की सोच रखते हैं वही जाके गड़बड़ हो जाती है सर। मोदी जी का कहना है कि जिस दिन वो पैदा हो गए उसी दिन इस दुनिया का निर्माण हो गया। समझ रहे हो आप? महिला सशक्तिकरण के लिए जिन जिन महापुरुषों ने शुरुआत की, उसमें सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे, सत्यशोधक मुक्ता साळवे, और जिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और उस संविधान में आरक्षण का प्रोविजन किया, उस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच सच नमन करता हूं सर। और भारतीय महिला का जो बदलाव का जो दौर है, वो तो भारत देश को जब आजादी मिली, आजादी के बाद ही शुरू हुआ सर। और इसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी गांधी जी ने शुरुआत की थी, और उस दिन से लेकर आज तक पंचायत राज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन आज भी जारी है, जिसके कारण आज महिला राजनीति में अलग अलग जगह पे सभापति हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, आमदार हो, सारे जगह पे बैठे हो। सर, ब्रेकिंग न्यूज अभी 2 मिनट पहले बिल हैज बीन पास्ड, बिल पास हो गया सर लोकसभा में। सर रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास। कांग्रेचुलेशंस सुरेश चंद्र राजन जी, आपको और देश की 140 करोड़ जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सर जी। Women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha. Fantastic. जी। Yes sir, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल पास करने से महिला का सशक्तिकरण होगा ऐसा नहीं है सर। जब एक तरफ हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आती है, लेकिन उसके दूसरे बाजू में जब हम देखते हैं तो जब नए संसद भवन का निर्माण किया जाता है, उसका उद्घाटन का प्रोग्राम रखा जाता है, उस वक्त हमारे देश की राष्ट्रपति, इस देश की प्रथम नागरिक हमें आसपास भी कहीं नजर नहीं आती है। ये सवाल लेकर हमारे देश के 140 करोड़ से ज्यादा जनता चिंतित है, और वो मोदी सरकार से पूछना चाहती है कि मोदी जी, आप महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आते हैं, लेकिन जो महिलाएं अलग अलग पद पर पिछड़े वर्ग से, आदिवासी, दलित, ओबीसी समाज से वहां बैठे हैं, उन लोग का आप सम्मान नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि महिला रिजर्वेशन का बिल पास करने से नहीं, बल्कि इस रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, और सारे महिलाओं को इमीडिएट इस रिजर्वेशन का बेनिफिट देना चाहिए। सुरेश चंद्र जी, अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ महिला एम्पावरमेंट के बाद, सशक्तिकरण के बाद सिर्फ मुंह जबानी बात करते हैं, मगर अगर महिला को सशक्त किया है तो बीजेपी ने किया है।
तो उन्होंने गिनाया कि 11 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बांधा, किसको फायदा हुआ? ये महिला एम्पावरमेंट था, सशक्तिकरण था। चूल्हा, गैस, करीबन 10 करोड़ 9 करोड़ घर में गैस दिया मोदी जी ने। वो किस लिए? महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट के लिए था। आज भी जो मोदी जी जो किए हैं, जो गिनाए अमित शाह जी ने, बोले कि जो भी कुछ किया है कांग्रेस ने सिर्फ जबान से कुछ बोले हैं, मगर इंप्लीमेंट मोदी जी ने किया है। वो आगे जाके कहता कि ओबीसी 20% रिजर्वेशन राजीव गांधी उनके खिलाफ था। अमित शाह का कहना है 27% ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ राजीव गांधी थे। अगर आप गिनती करोगे कि आज के तारीख में 85 बीजेपी एमपीज ओबीसी से आता है, तो ये गिनती और आंकड़ा सब बीजेपी के फेवर में है सुरेश चंद्र जी। तो कैसे आप इस चीज को नकार सकते हैं कि जब बीजेपी कह रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ जबान से बोला है, इंप्लीमेंट मोदी साहब ने किया? हाउ डू यू सी सुरेश चंद्र जी? बस इसमें क्या है सर, इसमें एक चीज है कि जब आजादी के बाद जब हमारे इस देश में हम सुई तक बना नहीं पाते थे, उसके बाद भारत जिस ताकत के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरा है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, कई सारे लोगों के घर पे छत नहीं था, उन सारे लोगों को मकान देने का इंदिरा आवास योजना के माध्यम से देश भर में काम किया गया, रास्ते बनाए गए। लोगों के हेल्थ का इशू, बड़े बड़े महामारी आती थी, उस महामारी से जूझने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्पिटलों की कई सारी सुविधाओं का अभाव था। इन सारे सुविधाओं को निर्माण करने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज के तारीख में क्या होता है, जो सत्ता में बैठे मोदी सरकार है, ये मोदी जी जो है वो झूठे एक सरदार है, और उन झूठों के सरदार में काम करने वाले ये अमित शाह हैं। और आपने देखा होगा ये चंद्रयान 3 के सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, ये कई सारे सरकारों ने मिलकर अच्छा काम किया है, तभी जाके हम लोग चंद्रयान 3 में सक्सेस पाते हैं। लेकिन उसकी नींव चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में रखी जाती है। सुरेश चंद्र जी, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने सबकी तारीफ करी। मोदी जी शौचालय की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस काल में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, अलग अलग अधिकारों को लाया गया, अरे हम ऐसे देश में रहते थे जिस देश में इंसानों का इंसानियत का दर्जा नकारा जाता था, लोगों को एक इंसान होने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। और उसके बाद कई सारे जो समाज घातकी जो विधायक थे, कानून थे, उस कानून को खत्म करके एक सेकुलर राष्ट्र निर्माण करने का, जिसमें सर्व धर्म समभाव का विचार लेके सभी जाति धर्म के विकास करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो जी बोलिए। तो ये मोदी जी कल जो भाषण दिए थे सुरेश चंद्र जी, बोले कि देखिए जो पुराने पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 भी देखा है, जिस प्रकार से इस देश को कश्मीर इंटीग्रेट किया इस देश के साथ। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यही से गूंज हुआ था। 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी, वो भी इस सदन ने देखा है, मोदी जी के काल पे हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन, वो भी मोदी जी ने किया है। 10% रिजर्वेशन जो गरीबों के लिए है, वो मोदी जी ने किया है। तो इस चीज को जो गिनाए उन्होंने कि उन्होंने 2014 से लेकर आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी का कहना है कि देखो ये मोदी जी अमृत काल में कुछ करके दिखाया। और जब मोदी जी कहा कि भगवान ने सब पवित्र काम मेरे हाथों से करना तय कर दिया है, सुरेश चंद्र जी बार बार उस चीज का दोहराना, कैसे क्या कांग्रेस काल में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने किया है? सर प्रदीप जी, इस बात को हमें इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि मोदी जी देखो चुनाव नजदीक आ गए हैं। 8-9 महीने बाद देश में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के में अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। और वो जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का हो, झूठे राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर उन्होंने
पॉलिटिकल कुछ फायदा मिलता है क्या, उसके बारे में उन्होंने कोशिश किया था। बिल्कुल उसी तरह से ये करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए सर, नए संसद भवन में प्रवेश करते समय सरकार ने सांसदों को संविधान की कुछ कॉपियां दिया है। उस संविधान की कॉपियों में से सेक्युलर और सोशलिस्ट इस वर्ड का गायब होना इस किस बात का संकेत है सर? और जब कानून मंत्री को पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि इसके बारे में गोलमाल कुछ जवाब देके वहां से पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है सर कि चंद्रयान 3 की बात करते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 और 1 के बारे में वो कभी बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कभी भी इसके पहले सरकारों ने या कांग्रेस काल में जो काम हुआ है उसका कभी भी सम्मान नहीं करते, उसको कभी भी रिकॉग्नाइज करते नहीं है। और इनका ये मोदी के ऊपर जो फोकस है उनका, या मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की सोच लेकर ही काम करते हैं, वो देश के लिए घातक है, देश के लिए हानिकारक है। जी, जहां तक संविधान का प्रश्न है, प्रियम्बल के अंदर जो शब्द मिसिंग है, जैसे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, इनका कहना है कि जो कॉपीज दी गई थी वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई थी, जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान संशोधन लाया गया था इंदिरा जी की सरकार द्वारा, और ये 2 शब्द उसमें ऐड किए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक जो ऐड किया गया था वो उसमें नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहली कृति जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो दी गई है, ऐसा उनका कहना है। सुरेश चंद्र नहीं सर, वे हम उनकी इन बात से सहमत नहीं है। उनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है सर। आज देखो, आज वो महिला सशक्तिकरण की, महिला आरक्षण के लिए बिल पास करते हैं, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं, देश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की कोई महिला सांसद या सरकार के कोई मिनिस्टर बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ महिला आरक्षण का बिल लाएंगे, लेकिन उसी वक्त देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण होने के बाद उद्घाटन में क्यों हम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते? क्यों? वो आदिवासी है इसलिए? देश का हर एक इंसान इस सरकार को एक सवाल पूछता है सर, महिला बिल पास करने से इसलिए नहीं बुलाते, या उस वक्त तो इससे भी ज्यादा एक और घिनौनी बात चल रही थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया, आपको भी मालूम है सर। देखो, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पतिदेव अभी दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके पति दुनिया में नहीं है, इसलिए भी शायद उनको नहीं बुलाया गया, ऐसी बात चल रही थी। मैं विश्वास नहीं करता सर, ये अंधश्रद्धा है ना। ये मैं इससे पहले भी बोला कि जो षड्यंत्र है, जो मनोवादी विचारधारा है, हम जब समानता का दर्जा देने की बात करते हैं, तो इस तरह की सोच लेकर जब हम काम करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आप इस तरह के कई सारे कानून पास करो, कई सारे अमेंडमेंट लाओ, उसके बाद भी अगर आप एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में काम नहीं करोगे, लोगों को न्याय नहीं दोगे, तो इस तरह के बिल लाने का मतलब क्या है सर? और ये बिल पास किया है, ब्रिजभूषण जी ने भी पास किया है सर, उन्होंने भी वोट दिया है। गलत है सर। लोकसभा में बैठे थे सर, आज थे लोकसभा में, उन्होंने भी पास किया है सर। सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी है। राहुल गांधी जी का कहना है कि सिर्फ 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ने ओबीसी को जो ऊंचाई पर ले जाना था वो नहीं लिया है। ये सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी है 90 में से, और ये 3 सेक्रेटरी सिर्फ 5% ऑफ बजट कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि जहां ओबीसी रिजर्वेशन वाली बात है या ओबीसी को आगे बढ़ाने वाली बात है, उसमें मोदी सरकार अनसक्सेसफुल, नाकामयाब रहा है। और उन्होंने कहा कि कुछ इसके लिए ड्रास्टिक करना चाहिए, मोदी जी को कुछ करना चाहिए। ये जो ओबीसी रिजर्वेशंस, ओबीसी को जितने एम्पावर करना चाहिए वो मोदी सरकार नहीं कर रहा। सुरेश चंद्र जी, तो कितना सच्चाई है इसमें? राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहा आज, सर राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सोच एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है कि भाई आप
लोक संख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर जब तक आपके हाथ में लोक संख्या के एग्जैक्टली फिगर हाथ में नहीं है, तब तक आप इस तरह से रिजर्वेशन कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप जल्द से जल्द जाति न्याय जनगणना करो और जाति के आधार पर जितनी जिनकी संख्या है उतना उनको रिजर्वेशन में भागीदारी मिलनी चाहिए। और आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन है उसमें से भाजपा का या शिंदे सरकार चाहती है कि ओबीसी की कोटा से मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया चाहिए। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में ओबीसी समाज में एक भय और डर का वातावरण निर्माण हुआ है और ओबीसी समाज ने यह भूमिका ली है कि आपको अगर मराठा समाज को आरक्षण देना है तो उनके लिए उनके लोक संख्या जितनी होगी उनको रिजर्वेशन की प्रोविजन किए। अगर आप ओबीसी समाज के कोटे से उनको रिजर्वेशन देते हैं तो ओबीसी समाज ये सही नहीं करेगा और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ओबीसी समाज में एक नाराजगी फैली हुई है सर। लेकिन सुरेश चंद्र जी, इसके जवाब में आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी ने और उसके बाद मेघवाल जी ने ये कहा कि भैया जो सेक्रेटरी बनता है वो अब जो 92 बैच का ऑफिसर होगा वही सेक्रेटरी बनेगा ना अभी जाकर के, तो जो ओबीसी अभी भी आएंगे उसके बाद ही जाकर के सेक्रेटरी बनेंगे, नंबर एक। और ये स्थिति जो थी ये राजीव गांधी जी के वक्त भी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी थी। दूसरी चीज अमित शाह साहब ने कहा कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 85 मेंबर्स ओबीसीज हैं लोकसभा में, यानी 29%, 29% ओबीसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के। और अकेली पार्टी है बीजेपी जिसने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ने आज तक कभी किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सुरेश चंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने तो हर एक समाज के नेताओं को अलग अलग जगह पे अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है, आपने देखा होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह की सोच लेकर इस तरह के जो फिगर गिनाने का काम है ना सर, वो उनके लिए नया नहीं सर, है। लेकिन वो अलग हाउस पर बोल रहे हैं, फिगर तो ठीक ही होंगे ना, झूठ तो नहीं बोल सकते। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, वो एक आदिवासी महिलाओं को देश का राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं देंगे, तो इसका मतलब क्या है सर? वो चाहते हैं वो जुमला करके चुनावी राजनीति करके अपना फायदा करने का, लेकिन उस समाज को न्याय नहीं देने का सर। जी, ये तो आप पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन एक चीज है, मैं वही बोल रहा हूं, आपको रोक रहा हूं एक सेकंड। जो आप बता रहे हैं सब दर्शक समझ गए सर, हमारे जितने दर्शक हैं बहुत अकल वाले हैं और स्पेशली आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, ये मैं आपको बता दूं, आप जो बात बोलते हैं बहुत ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि हमें भी रिस्पॉन्स आता है। सर, पहली बार है कि राहुल गांधी साहब ने मेरे मन की बात कही थी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भैया या तो नया सेंसस करवा लो, कास्ट बेस्ड एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करा लो, या फिर जो हम लोगों ने सेंसस कराया था 2011 का जिसका डेटा आपके पास है, या तो आप रिलीज कर दीजिए नहीं तो हम रिलीज कर देंगे। सर, आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है? इन्होंने कहा था कि डेटा में कुछ गलतियां हैं इसलिए हम लोग रिलीज नहीं कर रहे 2014 में, बिकॉज 2011 का जो सेंसस था उसका डेटा वो कोलेटेड, उसमें 2 या 2.5 साल लगते हैं पूरा डेटा कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में। इसको 2014 में रिलीज करना था सर, आज तक उसको रिलीज नहीं किया है। आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि आप लोग सब लोग मिलकर के एजिटेशन करें, आंदोलन करें कि वो डेटा तो रिलीज करो, मालूम तो पड़े कि ओबीसी इसमें से कौन कौन सी जातियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, शेड्यूल ट्राइब्स में से किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन सी ऐसी जातियां हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आ गई हैं। क्योंकि आखिरकार अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन कैसे देंगे? सर, यू आर राइट सर। सर, हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या सोनिया गांधी हो जी, हम लोगों ने ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका जो सेंसर है रिलीज करने के लिए कई बार सरकार से लेटर लिखा है, डायलॉग किया है, सभागृह में कई बार आवाज उठाया है, लेकिन ये लोग उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं। और आज आप जो बोल रहे हैं, आज वो सदन में बोल रहे हैं कि भाई हम जल्द ही जाति न्याय जनगणना करेंगे और उसके बाद हम सीमांकन करेंगे सारे मतदार संघों का और उसके बाद ये लागू करेंगे। इसका मतलब क्या सर? मतलब कैसे भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर
कि ये आगे जाके जाति निहाय जनगणना करेंगे। जो ऑलरेडी जनगणना हो चुकी है, जो उनका डेटा उनके पास है, उसको रिलीज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और उनको ये देश या हम लोग कैसे उनके ऊपर भरोसा करें कि वो आगे जाके जाति निहाय जनगणना करें। ये केवल 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस तरह का बिल पास किया है। कांग्रेस को दाद देनी पड़ेगी सर, कांग्रेस को बधाई देनी पड़ेगी। ये सब जानते हुए भी आपने इस बिल का समर्थन किया है, इसके लिए आपको साधुवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं पूरे देश। सर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की कार्यशैली को समर्थन नहीं किया है सर जी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश महिला आरक्षण के लिए, हाँ, देश के महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर महिलाओं के हित में कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जितने लोग हैं, ये सारे लोग इस महिला बिल के साथ खड़े हुए हैं सर जी। और हम उम्मीद करते हैं और सरकार से कांग्रेस पार्टी ने अपील भी किया है जी। एक छोटी सी बात प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जरा टाइम लगेगा, ये चुनाव के बाद जाकर के पहले सेंसस होगा, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसके पास जाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन होगा, किस में नहीं होगा। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये कहा जा रहा है 226, 227, 28 तक पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक व्यू पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप 2035 तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस प्लेस्ड बाय आर्टिकल 106 की लिमिटेशंस की वजह से आप शायद इसको 2035 तक इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये एक सोच है, मुझे मालूम नहीं है कि असलियत क्या है, शायद आपको मालूम हो। इस विषय के बारे में कुछ मालूम हो तो बताएं। मुझे सर मतलब इस तरह की ये सारे अटकलें लगाई जा रही है, इसके ऊपर ना अलग अलग एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार या केंद्र सरकार ये जो बातें बोल रही है ना, एक्चुअल में क्या वो 2-4 साल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इसको और बड़ा टाइम जा सकता है। तो लेकिन हमारे अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के साथ सारे अपोजिशन पार्टियों का एक ही कहना है कि आपने ये बिल पास किया है, इसको आप इमीडिएट इंप्लीमेंट करो। अगर आपको सेंसर का इशू है तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका डेटा रिलीज करो और उसके आधार पर ये आपकी पूरी कार्रवाई शुरू करो और जल्द से जल्द इस देश के महिलाओं को इस रिजर्वेशन का बेनिफिट दे दो। सुरेश चंद्र जी, 2026 तो 2026 शायद अमित शाह ने कहा कि शायद 2026 तक ये सब होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आज बोल रहे थे। बट राहुल गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन वाले मुद्दा जो उठाया है, अहम मुद्दा है, जिन्होंने कहा कि 90 में से सिर्फ 3, वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ओबीसी को आज तक जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को लेकर महाराष्ट्र में आओगे तो नाना पाटोले जी ने आरोप लगा दिया था एकनाथ शिंदे जी और देव फडणवीस जी पे। नाना पाटोले जी ने कहा कि जलना में जो आंदोलन किया, जिस प्रकार से जारंगे पाटिल, मनोज जारंगे पाटिल बोले कि ये प्रेरित था और एकनाथ शिंदे जी से प्रेरित ये आंदोलन था, ये नाना पाटोले जी का कहना था। नाना पाटोले जी आगे जाके कह रहे हैं कि जो आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ और लाठीचार्ज एनफोर्स करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी था, ये नाना पाटोले जी का कहना। बिकॉज आज पूरे महाराष्ट्र मराठा आंदोलन हो गया, अब ओबीसी का आंदोलन चालू हो गया और ओबीसी का उग्र आंदोलन चालू हुआ है और ओबीसी का पूरा महाराष्ट्र से लोग आके मंत्रालय को घेराव करने वाले हैं। तो आज के तारीख में पूरे महाराष्ट्र जल रहा है और आप नाना पाटोले जी का स्टेटमेंट कैसे देखते हो सुरेश चंद्र जी? सर प्रदीप जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो नाना भाऊ पटोले जी ने ये स्टेटमेंट जो किया है ना, इसका कुछ आधार है, क्योंकि इस राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जब ये लोग अर्लियर के सरकार में थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मेरा सरकार आता है तो मेरे पहले कैबिनेट में मैं समाज को, धनगर समाज हो या ओबीसी मराठा समाज हो, उसको रिजर्वेशन दूंगा। लेकिन उसके बाद 52 मोर्चा मराठा समाज ने निकाले, उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मराठा रिजर्वेशन है या उनको रिजर्वेशन देना है, ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है सर। अगर मराठा समाज को रिजर्वेशन देना है, उनके लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन देना है,
तो सेंटर में आज देखो केंद्र सरकार का एक विशेष अधिवेशन चल रहा है, वहां पे अगर ये 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है, उस कैप को हटाने की अगर वो वहां पे कानून बनाते हैं तो डेफिनेटली राज्य सरकार को इस तरह के कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का अधिकार मिल जाएगा। और मराठा समाज के साथ साथ धनगर समाज हो या बाकी अदर समाज हो, जिन जिन समाज को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इन सारे समाज को हम उनके लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। और आपने देखा होगा आज कांग्रेस ने भूमिका ली है, आप महिलाओं को 30% रिजर्वेशन देने का बिल पास कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उन रिजर्वेशन में SC, ST, OBC की जो महिला है उनको भी लोक संख्या के आधार पर वहां पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। SC/ST है उसमें सर, उसमें SC/ST का है कोटा? नहीं, तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर, मैं OBC नहीं है सर, OBC नहीं है, SC/ST है। वजह सर मैं आपको एक ना महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं सर। जी बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। वजह सर महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को 13% रिजर्वेशन दिया जाता है जी, और शेड्यूल कास्ट में 59 कास्ट आती है, लेकिन उसमें क्या होता है, 59 जो कम्युनिटी है उसमें जो ताकतवर 2 कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और बाकी की जो उपेक्षित और वंचित समाज है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, कभी रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिला है। जो कम लोक संख्या में है या एक जाति के बाद दूसरे क्रमांक पे आने वाली जैसे मतंग समाज हो, ऐसे कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है। इसलिए महाराष्ट्र में लेकर देश तक कांग्रेस की भूमिका है कि जो समाज उपेक्षित है, वंचित है, जिन समाज को आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला है, इन सारे समाज को लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अगर ये करना है तो केंद्र सरकार को आज जो अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन में इस 50% का जो कैप है उसको हटाकर उसको अमेंड करना चाहिए और राज्य सरकार को आरक्षण देने के अधिकार देने चाहिए सर। सुरेश चंद्र राजन जी, चलते चलते राहुल गांधी जी ने एक और बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा या तो आप 2011 का जो सेंसस है उसका डेटा यूज करके इसको एकदम फौरन इंप्लीमेंट कीजिए, या हम लोग डेटा रिलीज कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास तो डेटा है, क्योंकि ये डेटा जो था कलेक्ट हुआ था कांग्रेस के वक्त। इन्होंने लोकसभा में कहा है अदरवाइज वील रिलीज द डेटा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है ऐसा करना पड़ेगा? डू यू थिंक? वो उनकी मानसिकता नहीं है सर, वो सब ना नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी जी रिलीज करेंगे डेटा? मुझे लगता है रिलीज करना चाहिए, सारी देश को मालूम होना चाहिए कि भाई उस सेंसस में क्या है। वो देखो कांग्रेस का हमारा बड़ी एक्सरसाइज हुई, 4 साल चली सर 2008 से लेकर के 2011 तक ये एक्सरसाइज चली है। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब सबको जानने का हक है कि यार ये क्या है इसमें? सर जाते जाते मैं आपको एक बात कहूंगा, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता ऐसी है कि जो भी इस देश में काम होगा वो आहिस्ते स्टार्ट होगा। मतलब मैं या मेरी पार्टी ने ये काम किया, हमने निर्माण किया, ये इस तरह की सोच लेके चलते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने इस तरह का कभी काम नहीं किया। हम तो कंटिन्यूटी देखते हैं सर, कई सारी सरकारें आई। कांग्रेस एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट है, 5 के 5 स्टेट आप लेने के लिए कॉन्फिडेंस हो। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वेणुगोपाल जिस प्रकार से चालू किया है काम, और जो गरीब कल्याण योजनाएं आपने डिक्लेयर किया, तेलंगाना में 6 आपने 6 वचन, 6 गारंटी, 6 गारंटी, तो राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आपने गारंटी पे गारंटी लिया है और हासिल भी किया। भले बीजेपी कह रहा है कि कर्नाटका में आप फेल हुए, बट क्या ये गरीब कल्याण योजना इंप्लीमेंट होगा? और अगर हो गया तो आप जीत गए। हमने छत्तीसगढ़ में किया है, हमने कर्नाटक में किया है, और जहां जहां कांग्रेस के सरकारें हैं वहां पे हम लोगों ने जो कमिट किया लोगों को, ये सारी कमिटमेंट फुलफिल किया है सर। और उनको मालूम है आने वाले इलेक्शन में 5 राज्य है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जीत रही है सर, और इसी बात का डर है। और ये सारे इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उनको ऐसा लगा कि हम इस तरह से महिला आरक्षण का बिल पास करते हैं तो इसका फायदा आने वाले इन 5 राज्यों में हमें हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह कर्नाटक का जब विधानसभा इलेक्शन था, इलेक्शन के कुछ दिन पहले उन्होंने वहां पे शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन का बिल पास कर दिया सर, लेकिन सारे शेड्यूल कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी के इस
बिल के खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ मतदान किया और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। और हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है सर, आने वाले दिनों में इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ जीत रही है और इसके आगे जहां जहां इलेक्शंस होंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको गणेश उत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। गणेश आपको चतुर्थी की दोनों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम Thank you. सर, भारत माता की जय। वंदे जय मातरम। हिंद, थैंक यू। जय 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 महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, थैंक यू। So now the 2011 census assumes a lot of importance because even though Mr. Amit Shah says that this will be implemented by 2026 to 2027, I doubt it very much because I don't think they'll be able to complete the exercise so fast. Because even if the census starts, say around after 2024, by the time the data is collected, by the time it is collated and analyzed, it will take another 2 to 3 years, which means your data collection itself is going to take at least 3 years. और उसके बाद जाकर के डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज शुरू होगी, which means we are looking at 2029 elections. 2029 के इलेक्शन को हम लोग देख रहे हैं. So, well, let's see how it goes. That's the way, but the intent was there. Mr. Modi wants to do something that nobody wants to create a history. He's done it. He's creating history everywhere. प्रदीप जी, आर्टिकल 370 जैसे आप बार-बार बोलते हैं, आर्टिकल रिपील ऑफ आर्टिकल 370 and 35A. बिल्कुल. राम मंदिर. Yes, yes. Repeal and prohibition of verbal triple talaq. Verbal triple talaq has been made a criminal offence. Yes. Nobody else had the guts to do it. He's done it. और सर राम टेम्पल 550 साल के बाद अगर निर्माण हो रहा है, सर राम मंदिर, he is already itched himself where history is concerned. कृष्ण जन्मस्थान, बाबर के काशी लोगों ने तोड़ दिया और रिवाइव किया नरेंद्र मोदी ने. 550 years. This country had to wait 550 years. सर काशी विश्वनाथ for to build its own temple of their own god, and so the credit is out. Well, it all depends. Now, do remember, Winston Churchill also led Britain to victory in the Second World War and lost the elections in 1947 to the Labour Party led by Clement Attlee. So, I hope the people of India decide very, very wisely. No, the point is, as a Prime Minister, have you done something? Yes. Now, if you have the list. No, which is why, irrespective of whatever Winston Churchill may have done as far as India is concerned, he called us a beastly people with a beastly religion. He was also held responsible for the Bengal famine, where he refused to release wheat that was supposed to go, Australian wheat, which they said could have been easily released for relief for the Bengal famine, and he said no, I want it as a reserve for our soldiers. And they didn't even have granaries in England to store that wheat. So over 2 million people died. But that's a separate issue. But he was great for Britain. Let's be very clear. He wanted to give it to military, his army that is. But they didn't even have warehouses to Yes. store that wheat. They didn't need it. But all I'm saying is he was good for his country. And what Mr. Modi has done, he will definitely go down in history as the man, if nothing else, who repealed Article 370 and 35A and the Ram Mandir. He's got a huge. I mean, आप देखोगे That the is huge. report card आप देखोगे among all the prime ministers. Yes. If you compare it across spectrum since independence. Let's ask Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party whether or not Mr. Modi has really done anything for the country. Let's ask him. Mahmood Deshmukh साहब नमस्कार. नमस्कार सर, कैसे हैं? महमूद देशमुख जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा बोलिए कुछ. महमूद देशमुख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? I don't think Mr. Mahmood Deshmukh can hear me. He can't hear me. Can somebody check that, please? That'd be nice. You did say he was connected. Thank you so much that you're checking. Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party. I think now Mr. Raghav Chadda is very busy with his shadi, with his wedding, I think. Due to take place sometime in September itself, so kind of nice. Yes, everybody has to Love get to married. see
This is the first time I've seen a nice looking young man who's a politician and a very nice looking young woman who's an actress get married. Now, isn't that lovely? This used to take place in the south. It's now taking place in Delhi. Isn't that lovely? Absolutely lovely. I mean, because most of these guys who were film stars in the south, who used to stand for election, always used to get married to lovely actresses, also from the southern film industry. We've seen it for the first time that a very nice looking young man, very clever, a chartered accountant by profession, Rajya Sabha member, and in charge of Punjab for the Aam Aadmi Party, is getting married to that lovely girl, Pariniti Chopra. So congratulations to them both. Mr. Mahmood Deshmukh, I think we're still having a problem with his audio. He can't hear us. I think he can hear our commander's voice. I don't know if he can hear ours. All right, Mahmood Deshmukh साहब, आपको आवाज आ रही है सर? आप महमूद देशमुख साहब, आपको आवाज आ रही? अभी भी नहीं आ रही. He can't hear us. प्रदीप जी, आप बोल के देखें, शायद आपकी आवाज आ जाए. जी, can you hear us? ये आने वाले 5 स्टेटों में कांग्रेस ने आपके प्लान्स को कॉपी पेस्ट किए हैं महमूद देशमुख जी. तो he might hear you now. He might hear you now. तेलंगाना में 6 वचन, मध्य प्रदेश में 11 वचन. महमूद जी. Right. I think we are having a problem with the audio. When we're talking about जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाएं जो actually आम आदमी पार्टी. But let's cut to the brass tacks, Pradeep ji. बिल्कुल. Let's cut to the brass tacks. Do you think the women's reservation bill, 33% reservation for women, will have an impact on the BJP's chances in the 2024 election? Now let me take you back to 1989. Rajiv Gandhi passed the Panchayati Raj and the Corporation Bill, wherein it became an act wherein 33% reservation was ensured for women in the Panchayat and in the corporation. And the Congress came down from 420 odd seats to just 197 in 1989. Do you think the BJP's fate this time will be somewhat different? There will be a lot of factors. I mean, if you see, Rajiv Gandhi did a lot of things where introduction of various bills, very controversial things. But at the same time, what knocked him off was the Bofors. And the fact that VP Singh left the party. VP Singh left the party. It all started with Bofors. Yes. And Bofors took him down to those depths that it was unbelievable. The person was loud and he was elected, whatever you call it. Sympathy wave during Indira Gandhi's assassination. But even in 1989, he came back with the largest number of seats. Bilkul. 197 was the largest number of seats. He was knocked down because of Bofors. Now, yes. Though he did have great vision for the country, he wanted to do great things for the country. He thought that all these things that he did was for the benefit of the country. Rahul Gandhi and the Congress think that Mr. Adani will do the work of Bofors for Mr. Modi. They're trying very much, but you know, they tried with the Rafale deal earlier. Nothing sticks on Mr. Modi. You know, there's nothing to directly link him to any kind of corruption. It doesn't. I think we have Mr. Deshmukh with us now. Mahmood Deshmukh साहब, आपको आवाज आ रही है? जी. नमस्कार सर, कैसे हैं सर? महमूद देशमुख जी. Always a pleasure talking to you, sir. बड़ा मजा आता है सर आपके साथ बात करके. महमूद देशमुख जी, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण संशोधन जो है वो संशोधन पास हो गया लोकसभा में. आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब क्या इसके ऊपर बहुमत मिल जाएगा 2024 में? आपकी क्या राय है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को. देखिए सर, ये एक जुमला है. जैसे आज तक इन्होंने हर समय हर इलेक्शन के पहले एक जुमला छोड़ा था, ये भी एक जुमला है. महिला आरक्षण भी एक जुमला है. हालांकि हम सभी टीम इंडिया की सभी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी इसका स्वागत करती है महिला आरक्षण का, लेकिन इनकी नीयत पे शक है. अगर वाकई में नरेंद्र मोदी साहब महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो 2024 से महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए, ये मांग है जी. लेकिन वो कहते हैं कि उसमें क्या है, वो सेंसस करना पड़ेगा और डिलिमिटेशन जाना पड़ेगा वगैरह. जी हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूं आपसे कि जो सेंसस की जो बात है
तो 2021 में सेंसस होना था, हर 10 साल के बाद में हमारे देश में जनगणना होती है, जो 2021 में होना चाहिए था वो कोरोना काल की वजह से, कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। अब जो सेंसस होगा वो 2010 साल के बाद मतलब 2031 में होगा, और सेंसस करने में 2 साल 3 साल निकल जाएंगे। उसके बाद में डीलिमिटेशन की बात आएगी, उसमें 5-6 साल ही निकाल देंगे। इसका मतलब महिला आरक्षण, महिलाओं को जो आरक्षण जो आपने डिक्लेयर किया 33%, वो लागू होने में 2039 आ जाएगा जी, 2039 आ जाएगा। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। लेकिन राहुल गांधी जी ने और कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये भी कहा है, इसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई जो 2011 का डेटा आपके पास पड़ा है जो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, अरे उसके हिसाब से दे दो अभी। अब हम भी यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि 2011 का जो डेटा है वो ले लीजिए और 2024 में महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। अगर वाकई में आपकी नीयत साफ है ना, तो आप महिलाओं को, हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं 2026 और 27 तक क्यों इंतजार करना है, 29 तक क्यों इंतजार करना है, 2024 में ही हमारी बहनों को, बेटियों को, माओ को मतलब रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये अनाउंसमेंट है, घोषणा है, अनाउंसमेंट जुमला है सर, ये चुनावी जुमला है 2024 का। ये चाहते हैं, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब से टीम इंडिया बनी हुई है, इनके पैर के नीचे से जमीन सरक रही है और ये अलग अलग शगुफे छोड़ रहे हैं, और उसी का एक नतीजा है, एक हिस्सा है ये कि इन्होंने अभी मतलब एक महिला आरक्षण बिल लाया हुआ है, बल्कि इनकी नीयत के ऊपर शक है। और आरक्षण बिल को पास करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में एक बड़ा प्रमुख चेहरा भी था, आदरणीय सम्मानीय बृजभूषण जी भी थे उसमें, जिन्होंने महिला आरक्षण के लिए वोट दिया है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के प्रति उनके विचार कैसे हैं, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। मैं वही कहना चाहता हूं, इनका चाल और चरित्र है ना, चाल अलग है, चरित्र अलग है, दिखावा कुछ और है। लेकिन यहां पर एक चीज है, रूप से कहता हूं जी सर जी, यहां पर एक चीज है, महिलाओं के प्रति, बोलिए सर, आप कंप्लीट करें। इनके मन में कभी भी मतलब वो आदर की भावना नहीं रही है। आप इनका पिछला इतिहास उठाकर देख सकते हैं महमूद देशमुख साहब। तो एक चीज है, एक पार्टी है जिसने अपने एजेंडा को छोड़ा नहीं, वो है आम आदमी पार्टी। कीमतों के ऊपर, गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर के, बिजली को लेकर के 200 यूनिट फ्री, पंजाब में 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, उसके अलावा महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, उसके अलावा जिसको भी कुछ भी करना हो, जैसे कि पिलग्रिमेज पे जाना हो, 4 धाम की यात्रा करनी हो, अयोध्या जाना हो, गोल्डन टेम्पल जाना हो, 60-65 साल की उम्र के जितने भी, अधेड़ उम्र के जितने भी लोग हैं उनको, उन सब के लिए फ्री। एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का जो रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का और किसी का नहीं रहा है, सीधी सादी बात है, कोई उसके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। और मेडिकल यानी मोहल्ला क्लिनिक, इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल अटल रही है आम आदमी पार्टी, हिली नहीं, मानना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीजें जो हैं, ये सब मुद्दे जो हैं, वो ज्यादा कारगर होंगे 2024 के चुनाव के लिए, या जो कुछ अभी बीजेपी कर रही है वो होंगे? महमूद जी। बेशक देखिए विकास का मुद्दा अहम होगा, और मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है, अभी फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता संयोजक है हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो उनका जो मैनिफेस्टो है वही मैं समझता हूं कि टीम इंडिया का भी मैनिफेस्टो वही होगा, और उसी के बलबूते पे हम लोग सत्ता में आने वाले कल में 2024 में सत्ता में आएंगे। जबरदस्त। प्रदीप जी। तो महमूद देशमुख जी, ये 3-4 दिनों में मोदी साहब ने अपने उपलब्धियों को गिनाया। जब वो पुराने पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो बोले कि सबका साथ सबका विकास, ये गूंज उस पार्लियामेंट ने पूरे देश और दुनिया ने सुना है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पूरे देश और दुनिया देखा, जिस प्रकार से कश्मीर को हमने जोड़ दिया भारत के साथ। 1 नेशन 1 टैक्स, ये भी बीजेपी का उपलब्धि है।
बोले पूरे दुनिया देखा है, 1 रैंक 1 पेंशन, पूरे दुनिया, 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर। पूरे इलेक्शन कैंपेन के माध्यम से इस 2-3 दिन को उपयोग किया है, अपने उपलब्धियों को उन्होंने गिराकर लोगों और देश और पूरे दुनिया को सुनाया। कैसे देखते हो इस चीज को? शहीद हुए और मोदी जी यहाँ पे जश्न मनाने में मशगूल रहे, आपने देखा होगा जी, है ना? ये इनका जवानों के प्रति प्यार है। कश्मीर में 370 हट ये जश्न मनाए हैं, G20 का जश्न मनाने में मशगूल हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो संवेदनहीन है, इनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, आपने जो आप इमरजेंसी की बात करते हैं, तो इमरजेंसी के बारे में मैं कहना चाहूँ, ये कहते हैं 1977 में जो इमरजेंसी है वो तो जग जाहिर की दुनिया ने नजदीक से देखा है आंखों से, लेकिन पिछले 9 साल से आज तक जो एक इमरजेंसी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। यहां कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है? सरेआम डिक्टेटरशिप चल रही है, ये भी एक छुपी है इमरजेंसी चालू है। आज आप अपना आवाज, आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, आपको मोर्चा निकालने का अधिकार नहीं है, धरना देने का अधिकार नहीं है ना? ये मराठा आरक्षण के ऊपर आपने देखा होगा, लोगों ने मतलब धरना देने की कोशिश की तो उनको लाठीचार्ज उन पे किया जाता है। तो कौन से लोकतंत्र की बात कर रही है? ये गलतफहमी में जी रहे हैं। ये भले ही अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे, लेकिन आने वाले कल में 2024 में इनको ये सब दिखाई देगा। लेकिन जैसा प्रदीप जी बार बार बोलते हैं, महमूद देशमुख साहब, आपका जो मैनिफेस्टो है, केजरीवाल साहब का जो एजेंडा है, और याद रखें, मैं सबको बार बार ये याद दिलाता हूं, ये जो सब लाए हैं ना, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, गुड, उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, उसके अलावा महिलाओं को वजीफे, लेकिन कांग्रेस ने तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके अपना एजेंडा बना लिया साहब। कर्नाटक में जीत गए, मध्य प्रदेश में भी बना लिया है, तेलंगाना में भी बना लिया है। जी बताएं सर। देखिए सर, अभी आपने एक बात कही ना कि कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट किया है। जी किया है ना? किया। तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना यही है कि भाई सभी लोग कॉपी पेस्ट करें, लेकिन करे तो सही। उनका वो ये नहीं कहते हैं कि कोई नहीं करना चाहिए, सिर्फ हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी का कहना यह है, सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना यही है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सभी ने करना चाहिए। हमारा मकसद है इस देश की 140 आबादी को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए। फिर वो काम कोई भी करे, कोई भी दल करे। हम तो राजनीति से ऊपर उठ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हम हमारे इस देश की जनता की बात करते हैं। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है, सुपर 1 बनाना है, तो इन योजनाओं के ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो। तो आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ये सारे मुद्दे भूल गई है, इसका मतलब ये हुआ? क्योंकि साहब गैस सिलेंडर अभी भी आपने 200 रुपए कम कर दिया, तो गैस सिलेंडर अभी भी 900 रुपए का तो है। अरे 900 रुपए कम तो नहीं होते, कम नहीं होते ना। ये सवाल ऐसा है ना, ये सवाल आने वाले कल में इस सवाल का जवाब जो जनता वोटों के माध्यम से देगी इनको। जी प्रदीप जी, ये तो सरकार जो है, देखिए ये 140 करोड़ जनता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ अदानी और अंबानी की सरकार है। ये तो अपने मित्रों का भला करने के लिए सरकार में बैठे हुए हैं ये। देशमुख जी, आज अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात किया है और महिला को जितने एम्पावरमेंट करना है वो सिर्फ बीजेपी कर रही है, बाकी पार्टी सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, सिर्फ जबानी कुछ बोलना, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करना। बोले कि जन धन बैंक अकाउंट जब हमने खोले प्रधानमंत्री के स्कीम के माध्यम से 56% अकाउंट्स महिलाओं के थे। अमित शाह जी का कहना 56%। बोले कि आप देखिए गैस फ्री अगर देने वाली बात है, गरीब महिलाओं को सबसे ज्यादा बेनिफिट जो चूल्हा से हटकर गैस पे आ गया, वो मोदी साहब ने किया। 9 करोड़ घर और मैक्सिमम महिलाओं को इसका बेनिफिट हुआ।
बोले कि शौचालय 11 करोड़ शौचालय मोदी साहब ने बनाए। ये 11 करोड़ शौचालय सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ महिलाओं के लिए। नल से जल का कार्यक्रम था, हर घर नल से जल, करीबन 12 करोड़ घरों में मोदी साहब ने हर घर नल से जल में पहुंचा दिया। इसमें बोले कि जो भी मोदी साहब ने किया है वो इम्प्लीमेंट तरीके से किया है, और मोदी साहब का खुद का कहना है कि ऐसे पवित्र काम भगवान ने सिर्फ मोदी साहब के हाथों से करने का निर्णय लिया है। कैसे देखते हो देशमुख जी इसको? ऐसा है सर, ये जो आपने जो कहा ना अभी उज्ज्वल योजना, आप इसके हालात जाके देख लीजिए। जनधन योजना में उन अकाउंट्स के हालात जाके देख लीजिए। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो जल नल योजना जो है, नमामि गंगे योजना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा स्कैम हुआ है जो जल नल योजना के तहत। कहीं पे भी जल नल कहीं लगा नहीं है, कहीं पे वहां पे मतलब पंपिंग ये बोरिंग लगा नहीं है, कहीं भी जल नल का कनेक्शन मिला नहीं है, सिर्फ पैसे मतलब डूब गए हैं। कागज के ऊपर काम हुआ है, हकीकत में कहीं नहीं। आप पूरा यूपी में सर्वे कर लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला अगर कुछ हुआ होगा वो जल नल योजना का है। मैं उसके एविडेंस भी आपको दे सकता हूं। मगर इतने जो काम गिनाए महिला सशक्तिकरण के लिए, तो आप क्या इसका अपोज करते हो कि मोदी जी ने इंप्लीमेंट नहीं किए? ये तो आंकड़े पूरे सरकार ने दिए और मोदी जी ने वो रिपोर्ट कार्ड हर घर पहुंचा रहे कि हमने क्या क्या किया, घर से लेके नल से लेके हर चीज। मैंने अभी कहा ना, नल के बारे में आप उत्तर प्रदेश में पता लगा लीजिए, है ना। नल जल योजना है, कितने घरों तक पहुंची है आप पता लगा लीजिए। कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, उसका पैसा पूरे लोग खा गए हैं, सब मिल बांट के पैसा खा लिए हैं। वही हालत जो है वो उज्ज्वल योजना, गैस उज्ज्वल योजना का है। और महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करते हैं, अभी आपने बताया ना ब्रजभूषण शरण सिंह का जो किस्सा है ना, जिनके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये सोच रहे थे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया जल्द से। ऐसे कई किस्से हैं इनके, महिलाओं के बारे में इनको बोलने का अधिकार क्या है? मणिपुर आपके सामने है, मणिपुर जल रहा था, आज भी मणिपुर जल रहा है। लेकिन मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा या इनके होम मिनिस्टर ने कभी कुछ कहा? किसने आवाज उठाई महिलाओं के बारे में? आज इनके पार्लियामेंट में जितनी बैठी हुई महिला मंत्री है या महिला सांसद है, किसने आवाज उठाई? आप बताइए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो है, यहां से मणिपुर जाती है अकेले, और वो वहां पे महिलाओं के सुख दुख समझती है, जिस महिलाओं पे अत्याचार हुए उनको सुनती है, समझती है। और इनके पास समय नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है वहां मणिपुर में वो महिलाओं के हालात को समझे, लोगों के हालात को समझे। ये कौन से महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं प्रदीप जी, इस देश के अंदर देखिए 43 करोड़ महिला वोटर्स है ना। ये उनको लुभाने के लिए आने वाले 2024 के चुनाव में 43 करोड़ महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक जुमला दिया है, और ये जुमला ये फेल हो जाएंगे, मैं समझता हूँ। ये इस देश की जनता समझ चुकी है, इनको अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। आज भले ही लोग कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन आने वाले कल जब चुनाव होंगे उनको उस वक्त इनको इनकी जगह दिखा दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं महमूद देशमुख साहब, कि जब पिछली मर्तबा दिल्ली में चुनाव हुए थे, उस वक्त जो पूरा मीडिया है वो बड़ा जोर शोर से कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इस बार तो अरविंद केजरीवाल की विकेट गई, खत्म हो गए। इनफैक्ट क्या है कि वो बीजेपी नंबर 1 पर होगी, कांग्रेस नंबर 2 पर होगी, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी शायद नंबर 3 पर आए। ऐसी बात हो रही थी। हम लोग अकेले थे जो बोल रहे थे यार क्या बात कर रहे हो, 60 सीट्स के तो ऊपर आएगी, आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, छोड़िए दिल्ली के अंदर क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद तो आप लोगों ने एमसीडी भी जीत ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली भी जीत लिया, और छोड़िए। लेकिन आज की तारीख में आप लोगों को दिल्ली में काम करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है साहब, क्योंकि जो डेली सर्विसेज बिल उसको एक्ट बना दिया गया है, वो पार्लियामेंट में पास हो गया है, जिसकी वजह से आज की तारीख में जैसे आतिशी मरलेना जी कितनी बार बोल चुकी हैं, सौरभ भारद्वाज साहब कितनी बार बोल चुके हैं, अरविंद जी खुद कितनी बार बात कर चुके हैं, ये तो आखिर में अब आगे होगा क्या भाई?
अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ ही नहीं रही है, अगले महीने शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आएगी, 7 जज बेंच के सामने। तो तब तक क्या करेंगे, मतलब वो उसमें तो टाइम लगेगा ना महमूद देशमुख साहब। देखिए सर, ऐसा है, ईमानदार आदमी से सब डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार शख्सियत है, एक ईमानदार लीडर है ना। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। हमें काम करना है, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम करना है, तो वो काम करते रहेंगे। भले ही ये कितने भी रुकावटें डाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी नीयत में खोट है, भारतीय जनता पार्टी के नीयत में खोट है, मोदी जी की नीयत में खोट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार लीडरशिप है, एक लीडर है, और उनके नेतृत्व में सब पूरी टीम ईमानदारी से काम करते रहेगी। और एक ईमानदार आदमी किसी से डरता नहीं, वो सिर्फ ऊपर वाले से डरता है। लेकिन प्रदीप जी एक बात तो है, समझे प्रदीप जी एक बात तो है, जो महमूद देशमुख साहब अभी कह रहे हैं, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, दैट अरविंद केजरीवाल हैज ब्रॉट अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखिए राजस्थान में भी तकरीबन केजरीवाल के एजेंडे पे चल रहे हैं अशोक गहलोत साहब। जो वादे किए गए हैं इधर अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा, वो भी तकरीबन केजरीवाल जी के एजेंडे पर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुछ दिया जा रहा है वो एक छोटा मोटा वो बीजेपी की तरफ से, बाकी अरविंद केजरीवाल का है। कर्नाटक में तो टोटली अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का एजेंडा था। सो विच मीन्स दिस वर्क्स, प्रदीप जी, this means Aam Aadmi Party's model works. Only problem is, only Arvind Kejriwal has the ability, इतना सब देने के बाद भी सरप्लस बजट प्रोड्यूस करना। बाकी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार पैसे कहां से जनरेट करें। और अरविंद केजरीवाल जब से पावर में आए हैं दिल्ली में, पिछले 11 के 12 साल से 11 के 12 बजट जो है उन्होंने सरप्लस बजट प्रोड्यूस किए, डेफिसिट बजट नहीं किए। मतलब तो मुझे लगता है, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ करके सीखना चाहिए कि यार ये कैसे करते हो, जरा हिसाब किताब तो समझाओ। क्या लगता है आपको महमूद देशमुख साहब? देखिए सर, इसके लिए ज्यादा कुछ लगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका ईमानदार होना जरूरी है ना जी। आप ईमानदार रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है ना। और तो और छोड़िए पंजाब में भी आज और तो और छोड़िए पंजाब में, जहां पर लोग मानते नहीं थे, सब लोग बोलते थे ये नहीं हो सकता, ये जो 300 यूनिट फ्री दिए हैं, उसके अलावा किसानों के लिए न जाने क्या कुछ दिया है, उसके अलावा और तो और छोड़िए पूरा का पूरा एक नई समिति बनाई है किसानों के लिए, और स्कूल्स बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स बन रहे हैं। मतलब उस वक्त हर एक को ये कह रहा था कि पंजाब में ये हो नहीं सकता। अरे करके दिखा दिया भाई, मानना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इस पे। बाकी आप जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म कर लीजिए, बोले 24 करोड़ खर्च दिया घर पे, कुछ भी कर दिया। अरे यार अपना घर है, उसका क्या, अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा वो रहेगा ना उसमें, महमूद देशमुख। हाँ सही बात है जी जी। लेकिन पंजाब में भी जो आपने किया है वो बहुत जबरदस्त काम किया है, लगता है कि काफी मेहनत हो रही है वहां। लेकिन क्या ये मेहनत आप लोग कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू कीप इट अप? कहने का मतलब इस लेवल पर आप लोग काम कर पाएंगे क्या महमूद देशमुख जी? जी सॉरी, मैंने ये कहा कि जैसे दिल्ली में आपने काम किया, जिस प्रकार आप लोगों ने पंजाब में काम कर रहे हैं, क्या इस तरह का काम हर स्टेट में कर पाएंगे? देखिए कोशिश जारी है, देखिए कोशिश जारी है, जहां पे भी जनता, अब आपने एक तो बता दिया, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये तो मानते हैं ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल मैनिफेस्टो जो है ये आम आदमी पार्टी का है, सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी का है, और सभी पार्टियां इसको कॉपी कर रही हैं, कॉपी पेस्ट करके अपने अपने जगह स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो भाई वो तो आखिर में डेवलप। महमूद जी, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि पार्लियामेंट में कहा कि पूरे 90 जो सेक्रेटरीज है उसमें से 3 ओबीसी के हैं, ओनली 3। आगे जाके कहा कि ये 3 लोग सिर्फ 5% ऑफ बजट कंट्रोल करते हैं पूरे देश का, और ये ओबीसी की तरह अन्याय है मोदी सरकार का। मगर एक चीज यह है, मगर मोदी साहब, अमित शाह जी ने पूरे पार्लियामेंट को सुना दिया कि 85 एमपीज जो बीजेपी के हैं उनके टोटल में,
वो ओबीसी से हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, 29%, हाईएस्ट है। 29%। तो उनका आगे जाकर 37% तक आगे बोल रहा था। तो ये रिप्रेजेंटेशन जिस प्रकार से है, बोले कि अगर किसी को न्याय दिया है, ओबीसी को न्याय दिया है तो बीजेपी ने दिया है। इस चीज को कैसे, बिकॉज आखिरकार ओबीसी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है देशमुख साहब, इसको आप नेगेट नहीं कर सकते। बट बीजेपी का कहना कि सबसे ज्यादा न्याय बीजेपी ने दिया है ओबीसी को। हाउ डू यू सी दैट? देखिए सर, ऐसा है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने मतलब ओबीसी को न्याय दिया, इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं। आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, है ना, आप प्रधानमंत्री है, देश की सत्ता संभाले हुए, आपको तो 140 करोड़ आबादी को साथ में इंसाफ करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। आपका नजरिया सबके बारे में एक जैसा होना चाहिए, न कि मतलब ओबीसी के बारे में, एससी के बारे में या ओपन के बारे में। ये सब बातें नहीं, बेहुदा बातें हैं, ये चीप पब्लिसिटी की बातें आप कर रहे हैं। भाई आपको 140 करोड़ की आबादी के लिए मतलब करना चाहिए आपके लिए, आपको। राइट, महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, कीप अप द गुड वर्क। जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए प्लीज। ऐसा है, देखिए सर, एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं। जैसे जिस तरीके से भी मराठा आरक्षण का इशू उठा है ना, वो लास्ट टाइम एसीबीसी के तहत, है ना, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के हिसाब से मिला था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मतलब 16% मतलब मराठा समाज के लिए आरक्षण दिया था। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, और उसी के साथ में 4% माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षण का प्रोविजन किया था जी। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि माइनॉरिटी के आरक्षण के बारे में कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के अंदर मस्त हैं। माइनॉरिटी के आरक्षण के बारे में भी आवाज उठनी चाहिए। आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से ये होना चाहिए कि माइनॉरिटी को मतलब जो मतलब सोशल एंड एजुकेशनल जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड और एजुकेशनल बैकवर्ड, जो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में ये प्रोविजन है, जो सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक पूरा शो करते हैं सर, इसके ऊपर तो पूरा एक शो होगा। पहले सच्चर कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट। रंगनाथन, यस सर, यस। आप अगर जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि माइनॉरिटी के जो हालात है ना, वो एससी कम्युनिटी से भी बदतर है। जी दुरुस्त बात। एससी कम्युनिटी से भी मतलब बहुत बुरे हालात में माइनॉरिटी है इस देश का। लेकिन माइनॉरिटी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट के आधार पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिठाई और उन्होंने 2010 या 2011 में अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन ये था कि इतना रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए और माइनॉरिटीज में ये जातियां हैं जिनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके ऊपर एक पूरा शो रखेंगे सर। महमूद देशमुख साहब, थैंक यू सो मच, और आपने ये इशू उठाया यहाँ पे, उसके लिए आपका और भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय शिव, जय महाराष्ट्र। जल्द से जल्द मिलते हैं सर, इस इशू को उठाइए आप। जी बिल्कुल, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Mr. Mahmood Deshmukh, and by the way, that is part of the Mandal Commission report also. But I thought that as far as Maharashtra is concerned, you know, Ansaris, Qureishis, all these, the 4% reservation. प्राइम मिनिस्टर ने पशबंदा मुसलमान का अपलिफ्टमेंट के एम्पावरमेंट के बात किए जी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम probably when he takes up these issues, because that is a huge vote share for the UP experiment, or at least a great tactic to divide the Muslim vote. Exactly sir, exactly, and much needed, by the way. बिल्कुल sir, and much needed, because let's be very very clear, the Ashraf Muslims have been ruling the roost as far as the Muslim vote is concerned, and they, all of them, trace their ancestry back to allegedly back to the Persians, the Iranians, or the Arabs, or the Turks. God knows, maybe they should all go back to Iran or to Turkey or to the moon.
where it came from. In fact, they can't even go to the moon anymore because we are there on the moon already. And good news again, by the way, tomorrow the Pragyan rover and the Vikram lander is expected to wake up again because the new day has started on the moon. So the solar cells are being heated up and there is every possibility that the Vikram lander and the Pragyan rover might wake up tomorrow. Right, and at the moment with us from the Vishwa Hindu Parishad, Sri Raj Nair Sahab. Sri Raj Nair Sahab, namaskar. Namaskar, namaskar. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Vande Mataram, Jai Shri Ram. जय सिया राम सर. एंड आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणेश उत्सव की बहुत बहुत चतुर्थी तो खैर खत्म हो गई, आज तो 5वीं तिथि आ गई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर. गणपति आ गए हैं. आपको भी राजीव जी, प्रदीप जी, आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की. श्री नायर साहब जरा ये बताएं, प्लीज डू टेल अस व्हाट यू थिंक प्रॉम्प्टेड Mr. Udayanidhi Stalin to say what he did with regard to Sanatan Dharma. What could have prompted him to do that, sir? Well, first of all, the mindset of the DMK leader is quite known to all because his father, late Mr. N. Karunanidhi, was also quite vocal as far as speaking against the native Sanatan Hindu Dharma, and he tried to ridicule many times. But then at the same time, whenever he ridiculed about Lord Rama, and if you remember, once he said about where did Lord Rama did his engineering. Then the second day he went in and he was hospital in Sri Ram Hospital. He was hospitalized in Sri Ram Hospital in Chennai. So they are quite known to be Hindu bashing people. Now here in this, what we feel is it is purely a political statement. The rise of BJP and the Padyatra undertaken by Annamalai ji has literally scared them, and the crowd which is joining Mr. Annamalai, it's really a matter of great worry for DMK leaders. So they wanted to ensure that, if they try to divide, because like in other parts of the country, like in Gujarat or even for that matter Karnataka or UP, where Hindus have polarized, Hindus have become one. In fact, in the past, there used to be a history of polarizing Muslims and dividing Hindus. Now Hindus have awakened and they are coming together. So that is becoming a great area of worry for DMK, and even BJP got around 5 seats as far as I remember in the assembly elections. So it is pure, and just saying it's a big threat the way it happened in Bengal, where Trinamool is still ruling, but the biggest largest opposition is BJP now. So that same story is going to repeat in Tamil Nadu. So that area, because for that reason only, because of their political insecurity, Mr. Udayanidhi Maran gave this statement. It is not this statement, rather it is a very choreographed statement, and well decided statement and given in a planned way. But Sri Nair Sahab, don't you think this is a continuation of what E.V. Ramaswamy, otherwise known as Periyar, and a couple of all these other guys who started the Dravida movement? In fact, if you remember, just before 1947, they had taken a delegation to England, to London, actually to tell the British that they need a separate country. They don't want to be part of the United India. They actually said that, including Periyar, where he said that we are now going to be dominated by Brahmins otherwise. Now, do you think this is a continuation of that same separatist movement, which is why Mr. Udayanidhi Stalin is saying all this? Although he made this kind of statement, Mr. M.G. Ramchandran was the CM for many years. Yes. And he was a bhakta. He openly, Madam Jayalalitha, she used to go almost every 6 months to Guruvayur temple. Yes. So all the statements maybe they have made in their respective times, but then that has not worked in Tamil Nadu. Tamil Nadu has so many ancient temples. It is the Tamilians, the Cholas who took Hindu Dharma to South Asian countries. I recently visited Bali. So if you see Cambodia, Bali, Vietnam, if there are temples, it was all bought by the Tamilian Hindus. So nobody can
Tamilians are, it's a very ancient, and if you see even the Ramayana, it is written thousands of years ago in Tamil. The And second nobody oldest could know Ramayana. anything but The second oldest Ramayana in the world comes in Tamil. Yeah. Kamman So Ramayana. nobody, all Yes. the stunts what this so-called Dravidic parties tried, Yes. didn't work in Tamil Nadu, and it is not going to work in Tamil Nadu. Maybe electorally the DMK might have won the election, but Hindu bashing, they are going to face music. Definitely what happened to Mamata Banerjee, she lost, although I am saying BJP may not have come to power, but they lost substantial seats in West Bengal. In Lok Sabha, they have 18 seats, and BJP has got 18 seats, and TMC 22. So they came here, and it is only because of the Hindu bashing. Now here, Udayanidhi Maran has done the Hindu bashing, the Hindus are going to awaken. Udayanidhi Stalin, sir, not Maran. Stalin. But you know, Srirajji, don't you see that this entire plot that BJP is... Sorry. BJP is... Srirajji, the entire plot BJP is actually gaining because Anna DMK is nearly not there. Jayalalitha, after the demise of Jayalalitha, Anna DMK is no longer a force that it used to be. Now there's a huge vacuum, and in its attempt to protect its own voter base, voter share, Junior Stalin and the DMK is actually protecting their turf, because Annamalai, as you said, is doing a door-to-door campaign across Tamil Nadu like it's never seen before, and indirectly or directly this entire exercise is going to benefit the BJP because you are carrying the flag of Sanatan Dharma, which Srirajji. Don't you think this is going to be a great beneficial? You're going to take a big leap where Tamil Nadu is concerned, Srirajji. See, politically, I won't be giving any statement, but definitely this kind of statements is definitely going to help the Hindu Dharma, the Hindu code, and Hindus are going to be polarized. And as far as, let me make it into a political statement also. The way Jagan Mohan Reddy told the entire Andhra Pradesh came to power, this is going to be a similar situation. I won't be surprised if BJP forms the government also in the next assembly elections. Might happen because Annamalai is doing a great job. Annamalai is doing an absolutely great job in Tamil Nadu. But the only thing is... He's ex-IPS, so he knows, he's a learned man. And here we must say something. By the way, let me say something over here. At the moment with us, Mrs. Sriraj Nair of the Vishwa Hindu Parishad. Please do send in your comments, as many comments as you can. And in case you have any questions for Mr. Sriraj Nair, please do send them in. I'll put them across to him. And try and be respectful. Even if you're not respectful, it doesn't make a difference. Anyway, you can be as disrespectful as you want to me. There's no problem at all. But I'll tell you what, you know, the soul of Tamil Nadu is Sanatan Dharma. Sanatan Dharma exists today because of the purity of the religion which was kept in Tamil Nadu by the Sangam literature, and later on, and even prior to that, by all the Brahmins who kept up all the holy books, who kept up the entire tradition. So how can you separate Sanatan Dharma from Tamil Nadu? Sriraj Nair sir, please do elaborate. How can anybody even think like that? Sir. See, this is, in Hindi we say Vinash. This is absolutely Vinash Kale Viprit Buddhi. Ji. The way he, as I said, this is pure, and they have become insecure. The response which Mr. Annamalai is getting for his Padyatra, that has scared them a lot. And they know the rise of BJP and Hindutva forces. But this weapon is, they are agitated and they are going to polarize. And this statement of Udayanidhi is a big blunder and a foolish statement. So rather than doing some good work for the state, rather than uplifting people from poverty, rather than stopping employment, they could have done something for the temples. Instead of that, they have done negative. The rebuilding of the Ram temple, it has happened after 550 years. 550 साल के बाद अगर किसी ने राम मंदिर को वापस बनाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, इस सरकार ने बनाया. That was a great moment because after Babur's invaders
destroying the Ram temple, and actuality it is this government, Mr. Modi, and you have been able to reconstruct the temple right now. Along with that, the other Kashi Vishwanath ho gaye, the corridor, Krishna Janmabhoomi mein jis prakar se movement ho raha hai. Now this seems to be a biggest revival of the Hindu period. How do you see that, Sriraj Nair sahab? Don't you think this is when you talk about revival of the Hindu movement, I think this particular years is going to be stand out in golden letters. कैसे देखते हो? How do you see it, Nair sahab? देखिए प्रदीप जी, हमारे देश को करीब करीब 1000 साल आक्रांताओं का राज झेलना पड़ा बड़ी बर्बरता से। और इस विश्व में कई सभ्यताएं थी, माया सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, प्री इस्लामिक इजिप्शियन सभ्यता, निग्रो अफ्रीकन की अपनी सभ्यता। ये तो अब्राहमिक कल्ट ने, चाहे वो इस्लाम बोलो या क्रिश्चियनिटी, इन सारे सभ्यताओं सिविलाइजेशन को नस्तो नाबूद करके खत्म करके आज अगर आपको उनको देखना हो, पाना हो, जानना हो तो आपको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जाना पड़ेगा। इस हमारे भारत भूमि में भी इन आक्रांताओं का राज, चाहे वो मुगल, तुर्क और लोधीज और ये खिलजीज, इन सब का राज करीब करीब 500-600 साल रहा। उसके बाद पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश का राज रहा। तो कुल मिला के 900-1000 साल के बाद भी आज भी इस पृथ्वी पर 120 करोड़ हिंदू हैं। इस हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। इस पृथ्वी पे चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। इसलिए ये जब इतने बर्बर आक्रांता हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए, ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज और ये सारे जितने यूरोपियन इन्वेडर्स थे वो भी नहीं कर पाए, तो ये स्टालिन और उनकी जमात कुछ नहीं कर सकती। हिंदू धर्म पूरे विश्व में बढ़ता चला जा रहा है, संख्या हमारी बढ़ रही है। सारी सभ्यताएं जब खत्म हुई, हिंदू धर्म सर्वाइव। हम जो एक किसी शायर ने कहा था, कुछ तो बात हम में कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो हिंदू धर्म को कोई आंच नहीं आने वाली। ये सब जिनका धर्म बदल के, जिनके पूर्वजों ने धर्म बदला था, वो भी धीरे धीरे घर वापसी करेंगे। वो धीरे धीरे पुनः अपने पूर्वजों के धर्म में आएंगे। और बाहर भी हम सब देखते हैं, हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा विदेशों में, चाहे वो इस्कॉन हो, श्री श्री रविशंकर हो, चिन्मय मिशन हो, इस संतों का प्रवास बाहर रहता है। बाहर भी यूरोपियंस भी बड़ी संख्या में आज हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उदयनिधि या स्टालिन गैंग की, इससे कुछ नहीं होना। सर यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टू मूव अवे फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो कुछ होने वाला नहीं है, सीधी सादी बात है वहाँ पर। लेट्स बी वेरी क्लियर सर, कल्चर ही ऐसा है, क्या करोगे, संस्कृति ऐसी है, उसके बारे में क्या कर लोगे आप? जो आपने अभी कहा है, जब रंग रंग में सनातन है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर दूसरी चीज़ क्या है कि अभी लेस्टर सिटी जो है इंग्लैंड में, वहाँ से फुटेज आई है कि किस प्रकार लोग गणेश चतुर्थी मनाने को जा रहे थे और वहाँ पर जो पुलिस है, दे आर ऑब्वियसली they've identified those policemen as being of Somali origin, Muslims of Somali origin. They've stopped these Gujaratis and other Hindus from going into the temple. These same people had done the same thing earlier. बागेश्वर धाम की जब कथा होने वाली थी, उन्होंने ये सब किया. So what do you think is happening over there? Is there a movement all over the world against Hindus? And look at what's happening in Canada. Canada में खालिस्तानी सरेआम पोस्टर लगा रहे हैं, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को ये कर दो, जितने भी कनाडा हिंदूज ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं सब लोग वापस इंडिया जाओ. सो don't you think the government of India needs to do something here? Yes, it was misguided. See, हमारे सिख भाइयों में कुछ लोग मिसगाइड हुए, कुछ लोग शायद ISI के पॉन्स हैं, बट अधिकांश, मैं कहूँगा 97-98% सिखों का भारत के प्रति प्रेम है, भारत उनकी भूमि है. गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी ने हिंदू धर्म के लिए ही काम किया है. और सभी यहाँ के जितने सिख भाई हैं वो अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ही रह रहे हैं. केवल कुछ 1% बोल सकते हैं जो मिसगाइडेड है, या जो भी कनाडा में अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट है. They are not here, they are not in India. जी हाँ, और वो भारत में नहीं है जी. दूसरा जो यूके में जो हो रहा है, ये भी यूके जो माइग्रेंट्स, जिस प्रकार से उन्होंने माइग्रेंट्स को और वहाँ पे उन्होंने
स्थान दिया है, विशेषकर मुस्लिम कंट्रीज से। अब वो फ्रांस और ब्रिटेन भी जो है अपने दे आर पेइंग अ बिग प्राइस फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ दिस कंट्रीज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। That's तो right. ये सारे जो मुसलमान वहाँ आए हैं, अब वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ा थ्रेट हो चुका है। तो वो जो थ्रेट वो जो थ्रेट है वो वहाँ के रहने वाले हिंदुओं को भी भुगतना पड़ रहा है। पर हमें पूरी आशा है, ऋषि सोरेन जी स्वयं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, यूके में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन सारे जिहादियों को कुछ लेंगे, ऐसी पूरी आशा है। दुरुस्त बात। नायब साहब, एक चीज है कि योर सपोर्ट, सुरेंद्र जैन जी वीएचपी के सीनियर लीडर है, उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया 4 दिन पहले, बोले कि मोनू मानेसर बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसने हजारों गोवंश की रक्षा की है, माता और बहनों की रक्षा की है, सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं सम्मानित करना चाहिए। Now how this thing is going on? Now this action जिस प्रकार से हो रहा है and VHP openly supporting मोनू मानेसर, नायब साहब इसको कैसे देखते हो आप? I mean, are you totally in support of मोनू मानेसर? We are absolutely. See, Dr. Surendra Jain is the Joint General Secretary of VHP, and the statement which is issued is the organization statement. It is absolutely right. We are all in full support of Monu Manesar, who we feel innocent, is being targeted. It's being a witch hunt by the Congress party in Rajasthan to polarize Muslims and appease Muslims. Monu Manesar is absolutely innocent. He is a Gaurakshak. He has saved thousands of cows. He has been working for the Sanatan Hindu Dharma in Haryana, and we are proud of him. He is our Bajrang Dal cadre. He is our Jilla Secretary in Haryana, and we are fully backing him, and we will provide all the legal help to Monu Manesar, and if required, we will go for agitations also. We will ensure that he. So, do you think he's been framed, sir? Yes, I said he is absolutely being framed by the Rajasthan government. Because elections are nearing and they want to, whatever 8-9% Muslims are there in Rajasthan. Last time some dent had happened because BSP also contested. So they want to ensure in the way they did in Karnataka, they want to polarize Muslims in Rajasthan. That is the only thing, and we've been just. So, but what about all these social media posts? They say that there are lots of social media posts of Monu Manesar exhorting his followers to violence, telling people to go out and kill Muslims. What about that? Are those posts fake? Have they been put out by somebody else? You tell me, you show me one post where he says that go and kill Muslims. Rather, there are the videos of Muslim ulemas and clerics where they are saying that एक मुसलमान कम से कम 10 हिंदुओं को मारे. So this yatra which undertook, which was there in Nuh, it was a peaceful yatra which had small kids, women and elderly. So why is that happening, Mr. Sriraj Nair? Can you hear me, sir? Have we lost him? I think he's frozen. I think his frame is frozen. Who was the MLA? Yeah, Mr. Nair, one small thing. Why do you think this is happening now? Where every procession is being attacked. Ram Navami की procession हो, कोई और procession हो, कुछ भी हो, हिंदुओं को लेकर के. Why do you think stoning is happening? This kind of thing is happening. Why? Why now? No, it is like a global phenomenon है. ये पत्थर मारने वाला phenomenon अगर आप देखें, ये स्वीडन में भी पत्थर मार रहे हैं, केरला में भी पत्थर मारते हैं, मस्जिदों के बाद जुमे की नमाज बाद पत्थर मारते हैं, कश्मीर में पत्थर बच्चों के हाथ में पत्थर दिए हैं. सो ये पत्थर मारने का जो जिहादी फिनोमेनन है, ये कॉमन है और कई वर्षों से चलता रहा है. अब जो है पूरी हिंदू प्रतिकार कर रहे हैं. पहले कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी ऊपर थी, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा था, सेकंड ग्रेड सिटीजन. अब हिंदू जाग रहा है तो ये सब दिख रहा है. अब हम खाली प्रतिकार कर रहे हैं तो हम बदनाम हो रहे हैं. ये पत्थर मारने का रिवाज या जो भी इनके पता नहीं, ये आज से नहीं, कई वर्षों से है. हिंदू अगर मंदिर से बाहर आते तो प्रसाद बांटता है. ये लोग क्या सीख के आते हैं कि मस्जिद के बाहर आके पत्थर मार रहे हैं. तो ये जो इनकी कौम के रहनुमा जो हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए. कौम इतनी पिछड़ी क्यों? अभी भाई साहब आपके पहले बोल रहे थे उनको आरक्षण चाहिए. अरे आरक्षण क्यों चाहिए? अगर आपकी कौम के, आप जो लीडर्स हैं, आपकी कौम को पिछड़ा रखने में लीडर्स और रहनुमा को सबसे बड़ा हाथ है. उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, उनको रोजगार के संसाधन नहीं मुहैया कराते हैं. इलेक्शंस आते हैं तो डेटा लेके घूमते हैं. सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, सबसे ज्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, मुफलिसी है, गुर्बत है, गरीबी है, बेरोजगारी है. तो इन सब बीमारियों का निवारण करने के बजाय हाथ में पत्थर हैं
और कौम पिछड़ी रह जाती है। फिर सच्चर कमीशन का हवाला दिया जाता है, मिश्रा कमीशन का या महमूद कमीशन के कमीशनों का हवाला दिया जाता है। तो कोर जो इशू है, जो सिम्टम्स है उनको एड्रेस करना और जो कोर बीमारी है अपनी कौम को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं, वो नहीं करने की वजह से सारी तकलीफें हैं। श्रीराज जी, और एक जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा था कि आप अपने शौर्य यात्रास में धर्म योद्धास को एनरोल कर रहे हो, ये फिर आपने प्रेस रिलीज निकाल दिया, कहा शौर्य यात्रास undertaken for awakening the Hindu society, offering homage to martyrs and for strengthening the Hindu values. Your press release says, he says you don't recruit anybody to challenge anybody in your, तो ये धर्म योद्धास वगैरह एक अफवाह था। श्रीराज जी, देखिए प्रदीप जी, धर्म योद्धा का रिक्रूटमेंट ये गलत खबर थी। इसको खंडन करते हुए माननीय आलोक कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये शायद इंडियन एक्सप्रेस ने इसको किस तरह से पोर्ट्रे किया था, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ये देश भर में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी और ये बात बिल्कुल पक्की है। जितने लोग बलिदानी है, जिन्होंने भी देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, गौ गंगा के लिए जो अपना जीवन दिया है या अर्पण किया है, उन सबका सम्मान किया जाएगा। युवाओं के अंदर जोश भरा जाएगा राष्ट्रीयता के लिए। बाकी धर्म योद्धा को रिक्रूट करने के बाद ये हमने इसको खंडन किया। हम ये बिल्कुल सही नहीं। राइट, चलते चलते सर एक चीज आज अच्छी हुई है। आज 1.5 दिन का गणपति था श्रीराज नायक साहब, 1.5 दिन का गणपति था जी जी। तो जुहू बीच के ऊपर 2 साल के बाद असल में समुंदर में विसर्जन करने का मौका मिला, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि गणपति का विसर्जन समंदर में नहीं होगा साहब। अरे यार, पता नहीं कितने टन, कितने हजारों लीटर मलबा, सुएज हर रोज समंदर में जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गणपति का विसर्जन नहीं होना चाहिए उसमें, समंदर में। इसको लेकर के महाराष्ट्र निर्माण सेना ने एजिटेशन भी करी थी कि व्हाई आर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ओनली ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, व्हाई नॉट ऑन अदर्स। So I am glad to say immersions were allowed. This time immersions were allowed. It's a welcome. I hope it remains. I hope suddenly people don't get up and say, hey, stop it. As if one small Ganpati, a 10-day-old Ganpati festival is going to destroy the sea, which has already been destroyed the whole year round by all the untreated sewage which has been going in, and with no sign of the sewage treatment plant so far. But Shriraj Nayak Sahab, thank you very much for joining us. Great pleasure as always talking to you. And once again, गणेश उत्सव की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। Thank you, sir. Thank you very much. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को एक बार फिर गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गणपति आप सब लोगों के लिए खुशहाली लेकर के आए, प्रोस्पेरिटी लेकर के आए। आपके दिल में जो भी है, आपकी सबकी कामनाएं पूरी हों। दिल में जो कुछ भी है, आपके गणपति वो आपकी पूरी करें एक एक कामना को। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। Right, that's just about it for this show. Please do keep sending in your comments, and if you haven't subscribed to the channel already, please do subscribe. Subscribe जरूर करें चैनल को। We'll of course be back over here tomorrow with subjects which actually concern you. चलते चलते मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आज की तारीख में कनाडा और इंडिया के बीच में चल रहा है, I don't see how it is going to end well for Canada. I don't think so. I don't think it is going to end well for Mr. Justin Trudeau. His fate will be exactly that of his father, Pierre Trudeau, who refused, Pradeep ji, if you remember, who refused to arrest Talvinder Singh Parmar in 1982 in spite of requests by the government of India. And what happened in 1985 after Trudeau ceased to be Prime Minister? In 1985, if you remember, Flight 182 Kanishka was blown in mid-air, exploded in mid-air near Cork Island in Ireland, and over 320 or 330 people died, out of which 280 were Canadians. 280 were Canadian citizens who perished.
Mr. Justin Trudeau is really playing with fire. I think, you know what? If Khalistan is ever created, it will be created in Canada. In Canada, not, Yes. not any other place except Canada. Ji, lag raha hai. Because other possible fertile land is Pakistan. Yes. But with Khalistan want to be create themselves. Why would they want to go over there? Where you know, a dollar is 307 rupees. बिल्कुल sir. So, मतलब अगर खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में बनेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है. And if you pursue, you know, a policy that is totally detrimental to absolute reality, Yes. by supporting or giving, playing fertile land for terrorists and anti-social elements, ultimately you're going to pay. You'll have to pay. You are going to pay. They are probably going to come back after you. They'll come after Because you. India is a strong government as on today. Sir, Mr. Trudeau will realize it only when they come after him. Let's be very clear. At the moment, his government is in power because of the support of the 25 Khalistanis who have been elected to the Canadian Parliament. And come the next election, Mr. Trudeau is going to be out. In fact, he's one of the most hated men in Canada itself if you go by the Canadian newspapers. Of course, I wouldn't know. But then that's a subject for the Canadians. As far as we are concerned, India has made it very, very clear, if you allow people in your country, Canadian citizens, to put up posters, putting up a bounty on the lives of Indian diplomats and their families, if your terrorists actually give threats to Hindus of Indian origin and tell them you go back to India, and Mr. Trudeau calls it free speech. A man holds up an AK-47 and he says that he's going to kill 50,000 Hindus. There's a chap called Pannu. कहता है 50,000 हिंदुओं को मारेगा. And Mr. Trudeau calls it free speech. Lovely, isn't it? Very and truly wonderful. I wonder what the US is doing. I wonder what FATF is doing. Maybe Canada should be declared a terrorist state. Very frankly. The way things are ultimately is ready for destruction. Yes, absolutely. Because if you go away from the values, you know, the constitution, the pillars that you talk about, protecting liberty, truth, and then you venture into this, you know, horrible of taking support of militant organizations. He calls this freedom of speech here. When the Canadian truckers went on strike, he sent the RCMP after them. Exactly. The Royal Canadian Mounted Police after them. I mean, this is crazy. So maybe now India should support the movement for a separate Quebec. Maybe. I'm just saying. Canada is set itself on a destruction path, self-destruction path. That's right. Because you can't move away from values and you cannot restore the country and protect the great things that you talk about, the pillars of democracy. Impossible. You can't do that. You can't allow an exhortation to violence to pass off for free speech. No, sir, you can't do that. Everybody has a right to express themselves. Fine. You want Khalistan? The demand for Khalistan was always there only in Canada, by the way. It wasn't there anywhere else. Let's be very clear. Nobody wanted Khalistan in India. India में, भारत में किसी को खालिस्तान नहीं चाहिए. कैनेडियंस को खालिस्तान चाहिए. जैसा कि अभी भी पहले यहाँ पर कहा गया इस शो में, कनाडा में बनेगा खालिस्तान. कोई दो राय नहीं. Whether it's Vancouver, whether it's Toronto, whether it's Montreal, वहाँ पर बनेगा खालिस्तान. कोई टेंशन नहीं. बनाइए, शौक से बनाइए, जो करना हो करिए. लेकिन हिंदुस्तानियों को अगर आप टारगेट करेंगे तो साहब आगे फिर ऊपर वाला मालिक है. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.